For anything, you can just drop me a text through the chat box. So first of all, I would like to welcome you all for this follow-up session. So we have 72 plus counting. So that's a really good thing. I wasn't expecting so many people, but मजा आएगा. If there are more people to learn, तो सिखाने में भी बहुत मजा आता है. तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग का लॉकडाउन बहुत अच्छा चल रहा होगा एंड बिजनेस तो आई कैन सी इट्स ग्रोइंग रियली वेल. आई कैन सी पीपल आर ग्रोइंग इन दिस लॉकडाउन. So we have to keep this session really confined. We just have 1.5 hour time. और मैं बहुत सारे like I have collected few questions. So the questions which I have got from you all, I have received quite a few good questions from you. So I hope you all know this session is regarding, तो हम आज सीधी उसी पॉइंट पे बात करेंगे बिकॉज वी आर रियली शॉर्ट ऑफ हम सेशन को क्लोज करें और वी यूटिलाइज एवरी मिनट ऑफ दिस 1.5 ओके. तो बेसिकली मैं पीपीटी नहीं, नॉट पीपीटी प्रेजेंटेशन because follow-up is more about talking and understanding what I am trying, because at the end of the day you have to I thought of keeping few slides but then I thought I will keep it next time. For this time मैं आप लोगों को जो बताना, follow-up is most importantly understanding the guest when he speaks. So basically आपकी शॉट यहीं से होगी, but to understand what I am trying to tell you, उसको interpret करना है because that's all follow-up is. ठीक है. So अभी सबसे ज्यादा जो important होगा आपका डायरी और पेन, and I would request you all to be prepared with your diary और पेन. अगर आप नहीं है तो अभी 5:11 हो रहा है, मैं आपको 1 से 2 मिनट का टाइम देता हूँ. Sit in a place where there is no disturbance because मैं काफी चीजें आपको बताने वाला हूँ and there is no slide, so it's really going to be important. आप नहीं याद रख पाओगे the sequence which I am going to tell you, you cannot memorize it, भूल जाओगे because मैं खुद भूल जाता हूँ. ठीक है. When I started my business मैं बहुत बार भूल जाता था, मेरे को काफी प्रिपेयर करना पड़ा because it's all about perfection. जैसे जैसे आप किसी चीज को में काम करते हैं वैसे वैसे आप उसमें परफेक्ट होते हैं. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सब लोग अपनी डायरी पेन्स रेडी लेकर बैठे एंड राइट इट डाउन. जो भी मैं आपको बताऊं आपको वो चीजें आप लिख लो so that it is going to be more helpful and more learning. ज्यादा अच्छा आप लोग सीख पाएंगे. ठीक है. So it's already 12. I'll just keep you a minute more. By then I'll keep my talk ready. Okay. So done. So I can still see people laying down, आराम से बैठ लेट कर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं. मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग एक अच्छे पोस्टर में, लर्निंग इज ऑल अबाउट अ गुड पोस्टर, आप लोग डायरी पेन के साथ बैठकर मीटिंग अटेंड करें और एल्स आप इसको क्विट कर दे बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ दिस मीटिंग. ठीक है. मुझे यहाँ पे नंबर नहीं बढ़ाने हैं. इफ देयर आर 10 people I'm happy enough to teach them because I don't want I'm least bothered about numbers. I'm more bothered about you understanding what I'm trying to tell you. Okay. So मेरा जो इंटेंशन है वो ये है कि जो मैं अभी बताऊं वो आप तक पहुंचे because this thing is at the end of the day is going to give you results. किसी भी रिजल्ट्स के अंदर if there is कोई भी अगर आपको रिजल्ट कन्वर्ट करना है, so in that particular result 5% role is 90% role is follow. जस्ट उसका इन्वेस्टमेंट बहुत बोलते हैं प्रेजेंट. कोई भी बिजनेस ज्वाइन कर, बिजनेस ज्वाइन अप करा है जब उसके कॉन्फिडेंस बिजनेस को लेकर, जो इंटरप्रेटेशन बिजनेस को लेकर, जो उसकी खुद की एक साइकोलॉजी है बिजनेस को लेकर, जब वो क्लियर हो जाती है information is 5%, clarification is 80%, है ना. follow is clarity, present क्या होता है, presentation is just so ये चीज आपको समझनी है कि कोई बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक अच्छा प्रेजेंटेशन हो गया
Yeah, sorry. अगर है उस प्रोसेस थ्रू, so you are not going to get a very great leader because मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है. Am I audible to everyone? Just raise your hand one more time. Just raise your hand if I am audible to you all. 11, 12, 13, 14. No, sir. डिस्कनेक्ट हो गया था. ठीक है. सो किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर हमें ऐसा है कि बस मीटिंग अटेंड करा दो, सेल आ जाएगी. गोइंग टू लूज योर गेस्ट. अगर आप ऐसा सोचते प्रेजेंटेशन से सेल आती है, नो, यू नेवर गेट द सेल आउट ऑफ प्रेजेंटेशन. एक पर्सन प्रेजेंटेशन में सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है, एक पर्सन बिजनेस के अंदर क्लैरिफिकेशन के बाद बात करें. और क्लैरिफिकेशन होता है फॉलो, फ्लो हमेशा इंडिविजुअल होता है. Why it is individual? हर इंसान का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है. So we have to answer his question as per his perspective so that he can come into this business. फॉलो कभी ग्रुप में नहीं होता, स्पेशली ऑन फोन कॉल. यू नो, फोन कॉल पे आपने 4 लोगों को कॉन्फ्रेंस पे ले लिया है और वीडियो कॉल पे आपने 4 लोगों को कॉन्फ्रेंस पे ले लिया एंड यू आर ट्राइंग टू क्लैरिफाई देयर डाउट्स. ऐसा कभी नहीं होता. यू आर नॉट गोइंग टू गेट गुड सेल्स. आपका बिजनेस जल्दी आगे नहीं बढ़ेगा. So a lot of people are telling that my voice is breaking. I don't understand what's the issue. वैसे तो मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, बट आई डोंट नो व्हाट्स द इशू. जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, आई विल रिकनेक्ट माय वाईफाई. I have resolved the issue. I think I have resolved the issue. So let's see. अभी आवाज आ रही है नहीं? Am I audible now? Network. Yes sir, yes sir. Thank you so much. मेरे घर में टीवी भी चल रही थी एक्चुअली वाईफाई से, so I have closed it and come now. Okay. Thank you so much. So let's get straight to the point. So, हमेशा याद रखो. थैंक यू सो मच. मुझे समझ में आ गया. सेम अगेन इट्स हैपनिंग यार. शुड आई स्विच ऑफ माय वीडियो? अभी मेरी आवाज आ रही है? आप यस सर. चलो, तो दिस इज बेटर. मैं ऑडियो ऑफ कर देता हूँ एंड नाउ आई विल स्टार्ट टेलिंग यू. आप बस नोट डाउन करते जाएं. अभी बेटर है. यार I can go with the majority actually. अब majority yes I am getting. I'll start the session now without wasting any more time. ठीक है. So follow up basically it's all about the psychology. Yes, ठीक है. नमन जैन जी, still voice break हो रहा है यार. अब मेरे एंड से तो सब सही है. मैंने I think सब सही है. माइक्रोफोन की सेटिंग्स ठीक है.
तो follow is basically more about the psychology of the game. ठीक है, मेरे को तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए आप लोगों ने मेरे भेजे. आपको समझना क्या है अभी बेसिकली कि मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ. प्लीज अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, जब भी हम किसी को प्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप कहीं पे कोई सामान परचेज, फॉर एग्जांपल आपके पास मतलब आपको विंडो शॉपिंग बहुत अच्छी लगती है. hold on. Sir, is it audible now? Yes, thank you so much. Okay, मैं अपने ठीक है, that's great. So basically follow up is more about the psychology of the guest. For example, हम लोग शोरूम में गए, हम लोग किसी शोरूम के अंदर जाते हैं और मोस्टली वी गो फॉर अ विंडो शॉपिंग. ठीक है, और हम किसी जैकेट को चेकआउट करते हैं एंड वी लाइक द जैकेट. ठीक है, और वो पर्सन जो सेल्समैन होता है, ही स्टार्ट्स कन्विंसिंग अस विद अ डिफरेंट रीजन. लेकिन हमें पता होता है कि हमें वो जैकेट नहीं लेना है बिकॉज वी डोंट हैव मनी, और अभी हमें जैकेट नहीं लेना है ना. तो वो पर्सन हमें कुछ भी बोलता है, एट द एंड ऑफ हिज कम्युनिकेशन वी गिव हिम अ रीजन. हम उसे कोई ना कोई रैंडम रीजन देते हैं बिकॉज हमें जैकेट खरीदना ही नहीं था. इट वॉज नॉट इन आवर माइंडसेट टू बाय दैट पर्टिकुलर जैकेट. हमारे दिमाग में वो जैकेट खरीदने की प्लानिंग थी ही नहीं. इस वजह से हम उस सेल्समैन को अलग अलग रीजंस देते हैं, और वो सेल्समैन उन अलग अलग रीजंस के ऊपर काम करता है. लेकिन उसको काम किसके ऊपर करना था, उसको ये बात पता होनी चाहिए थी कि भाई इसकी साइकोलॉजी लेने की थी ही नहीं, ये तो सिर्फ जैकेट देखने आया था. इफ ही वुड हैव वर्कड ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट, कि वो उसकी साइकोलॉजी समझता, ना कि उसके सवाल सुनता, और उसकी साइकोलॉजी खरीदने के अंदर कन्वर्ट कर पाता, तो शायद वो उस जैकेट को खरीद लेता, है ना. तो मोस्ट ऑफ अस, हम लोग जो गेस्ट के सवाल सुनते हैं और उनके डिफरेंट सवाल जब हमारे पास में आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, या फिर वी आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस वेल. बट द फैक्ट ऑफ द रियलिटी इज दैट क्वेश्चन इज नॉट अ प्रॉब्लम. द साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट इज ओनली नॉट प्रिपेयर्ड टू डू द बिजनेस. गेस्ट शायद बिजनेस करने के लिए अभी प्रिपेयर्ड ही नहीं है, या फिर गेस्ट शायद अभी बिजनेस करने के लिए रेडी ही नहीं है. उसके वजह से वो आपको अलग अलग तरीके के रीजंस पुट फॉरवर्ड करता है, बिकॉज नो वन इन दिस वर्ल्ड इज एक्चुअली हैविंग सो मच गट कि वो ये बोले कि मुझे बिजनेस नहीं करना, या फिर मैं बिजनेस नहीं कर सकता. बहुत कम परसेंटेज, ओनली 4 to 5% ऑफ पीपल यू विल फाइंड इन योर लाइफ जो किसी शोरूम में जाके बोले कि नहीं मैं तो बस शर्ट देखने आया था, मुझे नहीं खरीदनी. most of the people are those who give a reason rather than accepting that I don't want to do or I don't want to buy. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द लोग रीजंस देते हैं. तो हमें समझना क्या है, जैसे मेरे पास जो इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो गेस्ट हमें एक रीजन की तौर पे देता है. तो हमें सबसे पहले अपने फॉलोअप के अंदर अपना फॉलोअप इस तरीके से ड्राइव करना है कि हमारे गेस्ट की साइकोलॉजी बिजनेस को लेकर हो, वो बिजनेस करने के लिए कन्विंस हो, एंड यू विल फाइंड 80% ऑफ द क्वेश्चंस जो आप लोग ने मुझ तक पहुंचाए हैं, यू विल फाइंड दोस क्वेश्चंस विल ओनली एंड. वो सवाल आप उठेगा ही नहीं. अब ये कैसे किया जाए, ठीक है, तो इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है. जिस तरीके से आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हो, देयर इज अ सीक्वेंस टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम द एटीएम. अगर आप उस सीक्वेंस में कोई छेड़खानी ना करो तो आपका पैसा बहुत सिंपली बाहर आ जाएगा. एक गड़गड़ करके साउंड आएगा, आपको मजा आएगा और कुछ देर बाद पैसे वापस आ जाएंगे. हालांकि आजकल हम ज्यादा एटीएम जा नहीं रहे हैं, सबसे फोन पे गूगल पे है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस.
ठीक है, अगर प्रोसेस के अंदर आप एक भी गलती करते हो, चाहे पासवर्ड आपका सही हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन इफ यू डू एनीथिंग रॉन्ग इन द प्रोसेस यू वोंट गेट द मनी. तो फॉलो अप भी बिल्कुल उसी की तरह होता है. ठीक है, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूं, चाहे वो 1-on-1 प्रेजेंटेशन रहे, चाहे वो आपने किसी गेस्ट को किसी मीटिंग में प्रमोट किया हो, यू नो, उसके बाद का जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से आप ड्राइव कर रहे हो इज गोइंग टू डिसाइड यू नो द साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट, यू नो, आप किस तरह उसको ड्राइव करके लेकर जा रहे हो. ठीक है, तो मैं आपको उसके बाद का ही प्रोसेस बताऊंगा. मान के चलो मीटिंग खत्म हो गई या फिर आपने अपना 1-on-1 प्रेजेंटेशन खत्म किया. ठीक है, इसके बाद आपका शुरू होता है फॉलो. ठीक है, सबसे पहला सवाल आपको पूछना होता है, और भाई यू नो कैसा लगा. From here you can write down the questions which you have to ask him. ठीक है, the first question which you have to ask him, कैसा लगा, you know, अच्छा या बहुत अच्छा. Now again I'll come to the point of psychology. ठीक है, हम अगर मैं आपको अपने बर्थडे पार्टी में बुलाऊं, यू नो, और मैं आपके पास में एक ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक का जूस, ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक रख दूं, तो आप चुपचाप उसको उठा के पी लोगे. लेकिन अगर मैं 5 डिफरेंट कलर्स ऑफ जूस रखूं, सो यू विल बी कंफ्यूज्ड. ठीक है, या फिर मैं कोई जूस नहीं रखूं, मैं बोलूं क्या चाहिए, तो आप कुछ भी मांग सकते हो. लेकिन अगर मैं आपको ऑलरेडी जूस ऑफर करूं कि ये जूस है ये पियो, तो यू वोंट कंप्लेन, आप उसको चुपचाप पी लोगे, है ना. सो दिस इज व्हाट यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड हियर. ठीक है, कि हम जब एक क्वेश्चन पूछते हैं तो वो ओपन क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होना चाहिए. तो पहला सवाल आपको पूछना है, और भाई कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा. तो आई हैव गिवन हिम हियर 2 ऑप्शंस, अच्छा और बहुत अच्छा. तो आई नो आई एम गोइंग टू गेट द सेम आंसर which I want to listen. मुझे वही जवाब मिलेगा जो मैं सुनना चाहता हूं. ठीक है, तो इसमें वो जो भी आंसर दे. ठीक है, इसके बाद जो दूसरा सवाल हमें पूछना है दैट इज गोइंग टू बी, क्या बोलते हैं, विच पार्ट डिड यू लाइक द मोस्ट. आपको उससे पूछना है कि कौन सा पार्ट, कन्वे इन इंग्लिश ऑल्सो. ओके, यस. तो उसके बाद जो आपको दूसरा क्वेश्चन पूछना है दैट इज विच पार्ट डिड यू लाइक द मोस्ट, यू नो, प्रोडक्ट पार्ट और बिजनेस पार्ट. ठीक है, the first question is how was the session, good or very good. Okay, second question is going to be which part did you like the most, business part or the product part. Now in this particular question there are only 2 possible answers. The first possible answer is product, the second possible answer is business. Correct. Now this way of deriving the guest is really important, because if you are going in this particular process you will find 80% of your questions at the end of your follow up will end. जो आपको बहुत सारे गेस्ट अननेसेसरी क्वेश्चन पूछते हैं ना, मैं सोच के बताऊंगा, मैं पूछ के बताऊंगा, प्रोडक्ट ऐसा वैसा, all these questions will end at your presentation or at your follow up if you are deriving it in a right way. ठीक है, so this is going to be our second question. So the most possible answer for this is either he will say product or he will say business. In case if he says product, तो आप क्या सवाल पूछ सकते हो, what answer you can give. Exactly यार, products are so well, you know, it is one of the best food supplements and best products which we are giving out in the market, and just because of such high quality of our products we have already started our business in the international markets also, and the business is so successful without the advertisements just because of our product portfolio. है ना, हमारा बिजनेस इतना सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है. As he says product, yes we have to talk about the products, but again then we have to give a compliment on the business also. So as he says yes I like the product, तो आपको क्या बोलना है, of course यार the product portfolio is one of the best, we have the best supplements in the game, and our products are so high quality that we have already started our business in the international market also. Most of our product are of international standards and we have started selling in Dubai, you know, आप पूरी countries का नाम ले सकते हैं, and just because the product is so well the business is even more better. business तो और भी अच्छा है. ठीक है, तो you have to end your discussion with business at the end. ठीक है, second case के अंदर he might say business, then you have to say of course that business, you know, the business is really so good, so great, you know, already more than 15 lakh people are earning money through this particular project, and more than 6,000 people are earning a lakh almost every month. You know, so many people have fulfilled their dreams, almost lakhs of people, you know, are working, and more than thousands of people have achieved their goals and dream from this industry. ठीक है, तो आपको थोड़ी सी बिजनेस की तारीफ करनी है और फिर बोलना है प्रोडक्ट के बारे में कि एंड ऑफ कोर्स द बिजनेस इज सो गुड
just because our product portfolio is so strong. ठीक है, यहां तक बात आ गई. ठीक है, इसके बाद द थर्ड क्वेश्चन विच यू हैव टू आस्क हिम इज व्हाट वुड बी योर रीजन. अगर उसने और आप इसको बहुत, जैसे उसने बोला मुझे प्रोडक्ट पसंद है, तो यू कैन नॉट स्टार्ट द बिजनेस टॉपिक डायरेक्टली. सो यू हैव टू फ्रेम अ राइट क्वेश्चंस टू डिराइव हिम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ बिजनेस. यहाँ सवाल, एक सही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. अ राइट क्वेश्चन इज गोना प्ले अ वाइटल रोल इन पुलिंग योर गेस्ट from product to business. Okay, so the first question which can pull your guest towards business is what would be the reason or the benefits you find doing business with Vestige. मैंने उससे ये नहीं पूछा कि क्या तुम बिजनेस करना चाहते हो, मैंने उससे क्या पूछा, what would be the reason or benefit doing business with Vestige or doing business with, of course, yeah, doing business with Vestige. क्या benefits हो सकते हैं या फिर क्या reason हो सकते हैं, you know, Vestige करने के. अगर उसने बोला है business तो फिर वो बहुत बड़ा आंसर देगा. If he has said, if you have told products, तो after asking this question, you give some, you know, बहुत बार क्या होता है, हम कोई सवाल किसी से पूछते हैं. If we ask a question to someone, you know, for example, I ask you, what are the reasons of benefit doing Vestige as a business? So I will see that you have taken a 2-minute pause or 2-second pause. So what I'll do, I will start giving my own point of view. मैं अपनी खुद की, like I can say most of the I ask you, for example, I'm just giving you a situation here. Like I ask you, what would be the reason or benefit, you know, you find in this business opportunity? Then I saw that you took a 2-minute pause. Then very next moment, I will start answering the question also by saying most of the people. Now in your entire follow-up, the most important word is going to be most of the people. You know, again I'm telling, follow-up is all about psychology. So आपको क्या बोलना है, most of the people, you know, start their business with Vestige because they feel that they can have the residual source of income. You know, they can have a better secured future if they have a secondary source of income. They can fulfill their goals in an early time. तो मैंने उसको 3-4 ऑप्शंस दे दिए, मोस्ट ऑफ द पीपल बोल के. फिर मैं पूछूंगा वैसे, बाय द वे, व्हाट यू फील आर द बेनिफिट्स. अगेन द क्वेश्चन आई विल रिपीट बिकॉज फर्स्ट टाइम में उसने आंसर नहीं दिया था, एंड आई विल नॉट गिव 1 minute गैप. आई विल जस्ट गिव 2 seconds गैप. If I find the guest is not so much interactive, so I have to make sure the guest is interactive. So I will give few options to the guest by saying most of the people actually come into business because of so and so reasons. What would be, you know, what would be your, what do you think, what are the other reasons behind doing the business with Vestige? Now most probably he will repeat the same reasons what you have told, or he will add on 1 or 2 reasons which, you know, which he feels are the reason. तो आप बोलो exactly sir, wow, you have. इसके बाद आपको क्या करना है, as he starts saying something, once he completes his communication, you have to give a compliment saying, wow sir, exactly, you have got the things really right, है ना. Now अगर उसने now he has come slowly to the business platform, ठीक है. अब उसने बोला है yes sir, these are the things which a person can do. फिर आपको पूछना है sir, what are the things which you can do from Vestige business? आप क्या क्या कर सकते हैं Vestige business है. Now before I asked a third party question, what people can do from this business. Now I ask him straightforward, what you can do from this business. Now again he will answer this particular question. Okay, now once he has done with this particular question, I am going to ask him, see, first I ask the reasons. People are not comfortable in telling their dreams straight away because they are not having the habit out in the market to, you know, disclose or to speak out their dreams. ठीक है, when we suddenly ask what is your dream which you see from Vestige, you know, they feel really uncomfortable, and most of the people will give you just you know, any small reasons. If you want the guest to give the accurate dreams to you, you should connect it bit by bit. तो मैंने पहले benefits और reason पूछे थर्ड पार्टी के, फिर मैंने बेनिफिट्स और रीजन पूछे उस पर्टिकुलर इंसान के. आई आस्क हिम what do you think is your benefit and what would be your reason if you start the business with Vestige. Now he told, yeah, I can earn extra income, I can get this, I can make more money, I will have a stable future, you know, he will tell. Then I ask him, sir, what are your dreams which you think if you start earning money,
आप उन सपनों को पूरा करेंगे. कौन कौन से वो सपने हैं, विच आर दोज ड्रीम्स विच यू वांट टू फुलफिल इफ यू थिंक यू स्टार्ट अर्न मनी. आपको ये नहीं बोलना है कि ऐसे कौन से सपने हैं जो आप वेस्टीज से पूरा करना चाहते हो. आपको क्या बोलना है, विच आर दोज ड्रीम्स विच यू वांट टू फुलफिल इन योर लाइफ, और वो क्या सपने हैं. ऑफ कोर्स वी विल कनेक्ट हिज ड्रीम्स एंड वेस्टीज इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट. ठीक है, he will say कि यार I want to, now he has become a little more comfortable because 3-4 questions आपने उससे पहले पूछ चुके हैं. अब आपने उससे उसके ड्रीम्स पूछे, व्हाट आर योर ड्रीम्स इन लाइफ, आप क्या करना चाहते हैं. उसने बोला कि सर आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू बाय अ होम, आई वांट टू बाय अ कार. देन don't straight away start our communication. Ask him which car are you interested in. The moment you start taking interest in his dream is when he starts taking interest in your communication. This is the point where you are actually going to get connected with the guest. जैसे ही आप उसके ड्रीम्स में इंटरेस्ट शो करोगे, वो आपके कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट शो करना स्टार्ट कर देगा. इफ ही सेज आई वांट टू बाय अ कार, आई वांट टू बाय अ हाउस, तो आपको उससे पूछना है कि सर कितना बड़ा फ्लैट जमीन लेनी है, कितनी कौन सी कार लेनी है, क्या कलर का. अरे सर वाओ सर, ये तो बहुत सुपर्ब लगेगी, मजा आएगा, एंड आई एम श्योर. अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, I am going to share the moment he has told his dreams, I will share my 1 or 2 dreams, ताकि वो मुझसे कनेक्ट फील करे. पहले मैंने उसकी ड्रीम्स को थोड़ा डिस्क्राइब किया, उसके बाद मैंने अपना 1 या 2 ड्रीम उसके साथ शेयर कर दिया. फिर मैंने उसके साथ क्या शेयर किया. आई होप द स्टेप्स आर रियली क्लियर टिल हियर. यू आर ऑल राइटिंग ऑल द पॉइंट्स. ठीक है, क्या पहला सवाल हमारा क्या था, दूसरा सवाल हमारा क्या था. ठीक है, तीसरा सवाल हमारा, फोर्थ क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू, फिफ्थ क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू ड्रीम्स. ठीक है, एंड आफ्टर दैट इज व्हेन आई एम गोइंग टू टेल माय ड्रीम्स टू हिम, एंड देन जो भी उसका सपना था. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद का क्या स्टेप है. आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू टेल हिम कि सर देयर आर मेनी पीपल. अब दिस इज वेयर द गेस्ट, all the questions which are there in the mind of the guest are going to get vanished or diluted. Okay, now I am going to give him testimonies of Vestige family who has already achieved the dreams which he is having. The most important point, बहुत सारे लोग गेस्ट को वेस्टीज से कनेक्ट ही नहीं करते. Most of you are not actually connecting the dreams of the guest with Vestige, and at the end we talk about login. So he will give you different reasons why can't I do this business. अगर एक इंसान को ये पता चल जाए, if someone, मैं ये एग्जांपल बहुत पहले देता था, ठीक है, कि अगर आपको, this example I used to give to a lot many guests when I started my business. Do you have 1 crore rupees? तो आप लोग यहाँ चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं. ठीक है, डू यू हैव 1 crore? किसी के पास भी है तो यस लिखें, ना है तो नो लिखते. ठीक है, डू यू हैव 1 crore rupees? So I got few answers, no. ठीक है, my next question, can you arrange 1 crore rupees? Again the answer is no. ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक ऐसा मैप मिल जाए, एंड जो बहुत साल से इसकी चर्चा न्यूज चैनल्स में हो रही है और बहुत सारी जगहों पे हो रही है. You get a map of treasure wherein you are 100% sure that if you reach to that place, you are 100% sure that you will get the treasure, and that treasure is worth rupees 100 crore. But to pull out that treasure, you need an investment of 1 crore. Can you arrange 1 crore now? Now, yes. कहां से आएगा पता नहीं कहां से आएगा, but now you will arrange that 1 crore. Why? Because you have got a very strong reason. You are a traveler or not, doesn't matter. आपको ट्रैवल करना अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको जंगल में जाना अच्छा लगता है, नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता. आपके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता. Now only thing is you are 100% sure that you are going to get the treasure of 100 crore, and for that you need 1 crore. आप वो 1 crore arrange भी करेंगे, सारे problems को solve भी करेंगे और उसको लेकर भी आएंगे. Now why this happened? Because you were sure that you are going to get a result out of it. एक इंसान 1 crore भी arrange कर लेता है, सारी problem से fight कर लेता है when he is convinced that he is going to get a good output out of it. Now most of the guests will give you unnecessary questions, unnecessary doubts, just because they are still not sure कि वो यहाँ से अपने सपनों को, वो यहाँ से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, है ना. The moment, again मैं पिछले 3 स्टेप दोबारा से रिपीट करूंगा so that you have got a really strong hold on it. ठीक है, I'll ask him कि sir what is your goals by the way in your life. मैंने उससे नहीं, please understand this question, don't ask कि वेस्टीज से आप क्या सपने पूरा करना चाहते हैं. ठीक है, बिकॉज ही इज नॉट येट कनेक्टेड विद वेस्टीज. आपको सपना क्या, क्वेश्चन क्या पूछना है, व्हाट आर दोस ड्रीम्स व्हिच यू वांट टू फुलफिल इन योर लाइफ.
उसने अपने कुछ गोल्स बताए, आई स्टार्टेड डिस्कसिंग ऑन हिज ड्रीम्स, ठीक है। उस डिस्कशन में मैंने उससे एक सवाल और पूछ लिया, व्हाट डू यू थिंक सर, जो आप करेंटली कर रहे हो उससे ये अपने कब तक पूरे हो जाएंगे? ही इज लाइक सर 10 years तो लगेंगे, 15 years तो लगेंगे। आई लाइक नो प्रॉब्लम सर, मेरे गोल्स ये हैं, मैंने अपने गोल्स शेयर किए, नाउ ही इज कनेक्टेड विथ मी इवन बेटर। एंड नाउ मैं उसको बोलूंगा सर आपको पता है द ड्रीम्स व्हिच यू आर सीइंग, द ड्रीम्स व्हिच यू आर विजुअलाइजिंग, देयर आर thousands of people, hundreds of people who have already achieved in Vestige। फिर मैं उन लोगों की टेस्टिमनी शेयर करूंगा। नाउ इफ यू आर इनटू बिजनेस, आप वेस्टीज में बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके पास हर टाइप्स की टेस्टिमनी आपको याद होनी चाहिए, विथ नेम विथ स्टेट। यू नो, जो ग्राउंड वर्क करता है वही सक्सेसफुल होता है, ठीक है। सो यू शुड फर्स्ट हैव अ रियली गुड ग्राउंड वर्क। आपके पास कुछ नाम्स होने चाहिए, कुछ फोटोज होनी चाहिए, कुछ टेस्टिमनीज होनी चाहिए, यू नो, कि ऑन स्पॉट आपने उसको व्हाट्सएप पे एक फोटो भेजी, बोली सर आई हैव सेंड यू अ फोटो ऑन व्हाट्सएप, चेक इट आउट, ठीक है, दिस इज द पर्सन, he has already fulfilled, now the dreams which you are taking has been already achieved by so many people, and I'm sure अब यहां से मैं उसको, you know, always remember people never buy product, always remember people never buy product, they come on the faith of business, ठीक है। अब यहां मैं उसको क्या बोलूंगा, ठीक है, क्या बोलते हैं, यहां मैं उसको ये बोलूंगा कि सर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैंने टेस्टिमनी शेयर कर दी, टेस्टिमनी शेयर करने के बाद में मैं टीम एलीट की वैल्यू क्रिएट करूंगा, ठीक है। नाउ यू इमेजिन योरसेल्फ एज अ गेस्ट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, और आप सोचो, आप मेरे बात करने से पहले आप नेगेटिव थे कि बिजनेस नहीं करना, यू योरसेल्फ थिंक, आर यू गेटिंग कन्विंस्ड? इफ यस, देन दिस इज द राइट वे, ओके। आप अपने आप को गेस्ट समझो और स्टार्टिंग से पूरा कम्युनिकेशन समझो, ठीक है। और यहां तक मैं आपको कन्विंस किया, और यहां के बाद मैंने आपको क्या बोला, आफ्टर दिस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन आई टोल्ड यू कि सर, मैंने आपको बोला कि सर मैंने एक टेस्टिमनी शेयर की 2-4 लोगों की आपके साथ में, आई शेयर्ड फ्यू टेस्टिमनीज विथ यू व्हिच यू हैव ऑलरेडी डन, एंड देयर आफ्टर दिस आई एम सेलिंग फेथ। द लास्ट एंड द क्लोजिंग पॉइंट इज सेलिंग फेथ। अगेन आई एम टेलिंग यू, द लास्ट and the closing point is selling faith। भरोसा बिकता है मार्केट में, हमेशा याद रखना, ठीक है। Now how I'm going to sell faith is of Team Elite। I'm going to talk about Team Elite, I'm going to talk about the culture of Team Elite, I'm going to talk about Gaurav sir, I'm going to talk about Vipin sir, I'm going to talk about Nitin sir, or whosoever is your upline, ओके। हमें इनके बारे में बात करनी है कि सर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आई एम टेलिंग द लास्ट कम्युनिकेशन, ओके। मैंने टेस्टिमनी शेयर कर दी है, अब मैं लास्ट में क्या बोल रहा हूँ, सर आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारा जो कल्चर है टीम एलीट का, वो बहुत ही बेहतरीन कल्चर है, ठीक है। द कल्चर विच वी हैव इज अ रियली ऑसम कल्चर। वी हियर वी डोंट डिस्क्रिमिनेट पीपल विद देयर कम्युनिकेशन। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपको बात करना आती है, आपको कम्युनिकेशन करना आता है, आपके पास गेस्ट लिस्ट कितनी है, ये सब चीजों से आपको कोई टेंशन। हमारा जो यहाँ पे टीम एलीट का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इट इज सो वेल डिजाइन दैट एक इंसान जिसको कुछ नहीं आता, आप बिलीव नहीं करेंगे सर, कॉलेज गोइंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स टीम एलीट के अंदर हैं जो अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। कॉलेज गोइंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट कौन होता है? एक इमेच्योर बच्चा होता है जो अपने माँ बाप की भी ढंग से नहीं सुनता, जो पढ़ाई नहीं करता, जिसके अंदर शायद उतनी लिसनिंग कैपेसिटी नहीं होती, उतनी कम्युनिकेशन कैपेसिटी नहीं होती, उतना फ्रेंड सर्कल नहीं होता। लेकिन हमने ऐसे लोगों को भी टीम एलीट ने सक्सेसफुल बनाया है। टीम एलीट इज अ ग्रुप विच इज नॉट लुकिंग फॉर दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी गॉट अ लॉट ऑफ टैलेंट इन देम, दे आर जस्ट लुकिंग फॉर पीपल हु हैव गॉट अ लॉट ऑफ ड्रीम्स विद इन देम। और ये टीम एलीट इस बात को इंश्योर करती है, जीरो से हीरो बनाने तक की जर्नी, जीरो से सक्सेसफुल बनाने तक की जर्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये टीम एलीट लेती है। अगर आप पूरी ऑनेस्टी और पूरी लॉयल्टी के साथ टीम के साथ कनेक्टेड रहें और उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करें, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रेट करना है, किस तरीके से अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल हैंडल करनी है, एवरीथिंग आपको इंस्टा भी किस तरीके से बिजनेस के लिए यूटिलाइज करना है, सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ टीम एलीट, ठीक है। और आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक लर्निंग नेचर अपने अंदर लाना है एंड यू विल बी ड्रिवन टुवर्ड्स सक्सेस विद दिस टीम एलीट। आपको लास्ट में टीम एलीट की बातें करनी है और आपको अपने आप को सेल करना है कि सर आई एम गोइंग टू बी विद, लास्ट में आपको बोलना है कि आई एम देयर विद यू सर, आप एक कदम चलिए, 99 कदम मैं चलूंगा आपके साथ में। आप समझ रहे हो? दिस इज हाउ यू हैव टू ब्रिंग द गेस्ट टू द क्लोजिंग, ठीक है। अब बात आती है शॉपिंग अमाउंट की, ठीक है। ये जो शॉपिंग अमाउंट वाली बात है ये सबसे क्रूशियल है। मैं
अपने फॉलोअप्स के अंदर आई टॉक अबाउट 9,000 रुपीज पैकेज. जब गेस्ट बोलता है यस सर आई एम रेडी टू डू द शॉपिंग, तो मैं बोलता हूँ सर वैसे तो, अब उसने बोला यस सर बहुत अच्छा लगा मैं करना चाहता हूँ, है ना. अब इसके बाद आती है बात शॉपिंग की. ठीक है, वेस्टिज के अंदर शॉपिंग करनी है, ये बात उसको पता है प्रेजेंटेशन के अंदर कि एक 9,000 का पैकेज है, एक 3,000 का पैकेज है, और हो सकता है गेस्ट मेंटली 3,000 का पैकेज लेने के लिए रेडी भी हो, क्योंकि उसको प्रेजेंटेशन में पता चल चुका है कि एक 9,000 का पैकेज है, 3,000 का पैकेज है. ठीक है, एंड ही इज मेंटली रेडी कि यार वो मन में ये सोच रहा होगा यार 9,000 वाला तो महंगा था, मैं 3,000 वाले तो शुरू कर ही सकता हूँ, सर की बात सुन के बहुत अच्छा लग रहा हो. दिस इज व्हाट ही विल बी थिंकिंग एट द एंड. अब हमें क्लोजिंग कैसे करनी है, हमें अमाउंट कैसे मंगवाना है. नाउ द लास्ट पार्ट इज दिस वन. ठीक है, इसके बाद में देखो कोई अपने कम्युनिकेशन को इसके बाद डाइवर्ट मत करना. स्टे ऑन द ट्रैक, स्टे ऑन द लेन, एंड यू आर गोइंग टू गेट द सेल क्लोज्ड 100%. ठीक है, तो इसके बाद आपको बोलना है कि सर तो सर वैसे तो बिजनेस, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, ठीक है, वैसे the questions which you are asking in the chat box I'll answer them at the end, because मैं इस कम्युनिकेशन को खत्म करना चाहता हूँ. अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा. यू नो I'll open the, you can ask me in the chat box at the end of the session. ठीक है, so इसके बाद में मैं बोलूंगा वैसे तो सर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके वेस्टेज को भूल जाओ. किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए होता है. एक चाय की टपड़ी भी खोलनी है तो 1 लाख रुपए का कम से कम 50,000 to 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट लगता है. यस और नो, तो वहां से उसका जवाब आएगा यस. हमेशा याद रखना इट शुड बी एन इंटरेक्टिव सेशन. आस्क हिम यस और नो. ठीक है, मैं यहाँ भी आपसे यस और नो पूछ रहा हूँ चैट बॉक्स के अंदर. ठीक है, सेशन जितना इंटरेक्टिव होता है उतना ज्यादा इफेक्टिव होता है. ठीक है, तो आपको उससे क्या बोलना है कि वो बोलेगा यस सर, तो सर आप इस बिजनेस को शुरू करें, है ना. अगर आप मेरे से सजेशन लेना चाहें तो if you want to take suggestion from me that how should I start this business, it would be my recommendation to you that start with a shopping of 292 पैकेज. आपने वैसे वहां पे प्रेजेंटेशन में 2 पैकेज देखे होंगे. आप किसी से भी स्टार्ट, बी वेरी कंफर्टेबल, फोर्स नहीं करना है, बी वेरी कंफर्टेबल कि आप किसी के भी साथ स्टार्ट कर सकते हैं, बट माई सजेशन टू यू would be start with 292 point packages, you know, क्योंकि most of the people, now again I'm using the word most of the people who come in business with the vision which you carry, जिस विजन के साथ आप आ रहे हो उस विजन के साथ ज्यादातर लोग जो बिजनेस के अंदर आते हैं वो डे 1 से बहुत फास्ट मूव करना चाहते हैं. क्या आप फास्ट मूव करना चाहते हो? वो बोलेगा यस सर. तो फास्ट मूव करने के अंदर जो पहला रैंक है हमारा वो है 8%, द फास्ट 8% जो सेकंड रैंक है. और 282 शॉपिंग से वो रैंक हासिल करने के लिए वैसे आपको 16,000 का बिजनेस करना है, 500 पॉइंट्स का बिजनेस करना है, लेकिन अगर आप पहली शॉपिंग 282 पॉइंट्स की करते हैं तो डायरेक्ट आप 8% बन जाते हैं. हाँ, कुछ अब मैं उसके मन का डाउट भी मैं ही बोलूंगा. आई विल स्पीक आउट व्हाट इज इन हिज हार्ट, उसके दिल की बात मैं बोलूंगा. हाँ, कुछ लोगों को ये अमाउंट बहुत ज्यादा लगता है. I told this statement straight forward on his face कि हाँ कुछ लोगों को ये अमाउंट बहुत ज्यादा लगता है. बट अगर सर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, इफ यू ऑब्जर्व अ लिटिल बिट, यू नो एनी पर्सन हु स्टार्ट्स हिज ओन बिजनेस 10,000 rupees worth sweet he distributes to his relative. I am right that way or not? 10,000 rupees he will distribute food to the people around his society. 10,000 rupees he will spend on the decoration of the inauguration of his business. Am I right that way or not? The person will be like, yes, that is the value of 9,000, 10,000 rupees in this world right now. और उस amount के अंदर आप business start करने जा रहे हैं. Do you really think is that a very big amount? No. फिर मैं अपनी टेस्टिमनी शेयर करता हूं. जब मैंने इस नेटो मार्केटिंग बिजनेस को शुरू किया था, देन आई स्टार्टेड विद द फर्स्ट शॉपिंग ऑफ. अब देखो, अगर आपने खुद ने बहुत अच्छी अमाउंट के साथ स्टार्ट किया, देन अगेन इट्स अ टेस्टिमनी. मेरे पास ये पॉजिटिव पॉइंट है, सो मैं यूज करता हूं. यू नो कि आई स्टार्टेड नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री विद 12,000 रुपीज, जिसमें मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन जिस बिजनेस करने का जज्बात बहुत हैवी थे, तो मैंने अरेंज कर लिए थे. ठीक है, तो आपको गेस्ट को क्या बोलना है कि उससे पूछा आपने, सो डू यू थिंक इज, तो फिर आप उसको बोलो कि एनीवेज इट इज योर चॉइस, बट मोस्ट ऑफ द पीपल विल गो विद दिस पर्टिकुलर पैकेज. ठीक है, लेकिन अगर आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उस पैकेज के साथ जाएं. ठीक है, this I just told you from my point of view because I want you to go really fast in this particular business. ठीक है, यहां तक कम्युनिकेशन हो गया. ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको बस ये बोलना है कि सर देयर आर ओनली 2 steps now. One is ID creation and one is shopping. ठीक है, आप अपना आधार कार्ड का, आप उससे मत पूछो क्या सवाल है क्या जवाब है. यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा गेस्ट कुछ नहीं सोच रहा होता है, वो ये सोच रहा होता है कि हाँ यार मस्त लग रहा है, बात करके अच्छा लगा, लॉग इन करने के लिए मैं रेडी हूँ.
and now we put a hump in front of him saying that कि अब भी तेरा कोई सवाल है क्या और कुछ सोचना है क्या. No, these are the worst questions which you can ever ask a guest. You know, you should never put forward such questions. आप positive assume करो. If he wants to ask, he is bold enough to ask. He is not a kid who is not understanding what you are trying to tell. He is matured enough to put forward his questions which is there in his mind. So you don't have to frame a statement asking, do you have any more questions? No, you don't have to do that. So rather what you can do is, you can just tell him कि okay sir, so let's start the business then. है ना, कुछ नहीं करना है, आपकी ID create करनी है which is absolutely free of cost. So you send me your Aadhaar card details and these products and then we will go with the shopping. और इसके बाद आप shopping के ऊपर जा सकते हो. ठीक है. कोई सवाल आगे बढ़ के अगर उसको पूछना होगा तो वो पूछ लेगा, है ना, और वो जो भी पॉसिबल सवाल पूछ सकता है उसके जवाब हम डिस्कस करेंगे अगले आधे घंटे के अंदर. ठीक है. सो आई होप यहां तक सबकी चीजें क्लियर थी. यहां तक किसी को कोई भी डाउट था, कुछ भी समझ में नहीं आया, सो यू कैन आस्क मी नाउ. आई थिंक यहां तक चीजें साफ काफी क्लियर थी. ओके, वी हैव गॉट फ्यू क्वेश्चंस. लास्ट वाला पार्ट एक बार रिपीट करना है. ओके, सो आई जस्ट रिपीट द लास्ट पार्ट क्योंकि हम पूरा सेशन, ठीक है, सी लास्ट पार्ट के अंदर हमें क्या करना है. व्हाट वी हैव टू डू इज, वॉइस आप तक अच्छे से पहुंचे तो मैं वीडियो ऑफ कर देता हूं. One person has asked, one person told me I want to join but I don't have money. Okay, now that's where आपने जब उसकी ड्रीम्स की वैल्यू इतनी बना दी होगी, now ऐसा, now you have to understand again, this is a psychological question. आपको समझना होता है कि एक गेस्ट ऐसा कब बोलता है कि I don't have money, when he will tell, when he is not connected. अगर उसको चलो आई विल आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो. ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर स्पेसिफिकली करूंगा क्वेश्चन आंसर राउंड में. तो अभी जो लास्ट वाला पार्ट था मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं. ठीक है, इन द लास्ट पार्ट मैंने उससे क्या बोलते हैं, आई थिंक यू गाइज आर टॉकिंग अबाउट लास्ट पार्ट, मतलब वो शॉपिंग वाला पार्ट, राइट. तो शॉपिंग वाले के लिए मैं अपना कम्युनिकेशन कहां से शुरू करूंगा, हाउ विल आई स्टार्ट माई कम्युनिकेशन इज, जहां अब उसने बोला है यस आई एम रेडी फॉर द बिजनेस. ओके, नाउ आई हैव टू, अब मैं उसको बोलूंगा द वे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक इज, भाई वैसे तेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू हाउ मच डज इट रिक्वायर टू स्टार्ट एनी गुड बिजनेस, एनी गुड बिजनेस. If I have to start the business, how much investment should I do? Yes or no? He will say 1 lakh or 2 lakh or 3 lakh or 4 lakh. If he doesn't say, simply don't take too much gap. If he doesn't answer a question in 2 seconds, give him option. कितना लगेगा भाई, 2 लाख 4 लाख कितना लगेगा? You know, मैंने आपसे सवाल पूछा कि how much investment does it take to start any business? I take a pause of 2 seconds. If you don't answer in 2 seconds, then I'll put forward a option कि भाई कितना लगेगा, 2 लाख 4 लाख कितना लगेगा. Now out of my options plus or minus 1, he is going to tell one amount कि brother it's gonna take 1 lakh rupees to start the business. And I like exactly market में किसी भी business को start करने के लिए 1 to 2 lakh rupees चाहिए ही चाहिए. एक बहुत बड़ा investment चाहिए. There is a huge amount of risk, but the best part of Vestige there is no investment. You can just start with a shopping of what you want from Vestige and you can start your own business. Now if you will ask me my suggestion, then I would tell you most of the people, if you ask me my suggestion, then I would tell you most of the people in this business who wants to go really fast and who has got goals like you have got, they start the business with 282 points. They start the business with a package of 8,990. Now you must be thinking why? Because it has everything in it. You know, क्या बोलते हैं? It has everything in it. It has got consistency in it. It has got the fast 8%. Normally to do fast 8%, you have to do a business of 500 points. But here, just by doing 282 points in the first go, we will become fast 8% and we will get 750 rupees worth product free of cost. ये सारी बात हम करेंगे, है ना. और you will get a whole lot of products at your place जो आपको
you will get to have a better knowledge about the product also. ठीक है, but it is not compulsion. You can start with 3,000 or as per your choice 4,000-6,000 also, 3,000, 4,000, 6,000, any shopping which you want. But मैं आपको वो बता रहा था जो मोस्ट ऑफ द पीपल इस बिजनेस में एक किक स्टार्ट लेने के लिए. आई एम टेलिंग यू समथिंग विच मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस बिजनेस टू टेक अ किक स्टार्ट, they opt for this particular shopping. Most of the people, do you know anyone who started the business and he had the money? Most of the people who start their business, they don't have money, but to do a successful business they arrange money. ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे अपनी normally when I am doing follow up I share my testimony, not a very long testimony, सिर्फ a 10-second testimony. When I started my business, even I had no money, but I just thought that the business is so great. लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं. कांट आई डू अ शॉपिंग ऑफ 12,000 एंड आई अरेंज 12,000, आई स्टार्टेड माय बिजनेस. यहाँ पे आप अपनी टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं. ठीक है, और आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है, कि इसके बाद आप उसको बोल सकते हैं इतनी छोटे अमाउंट के अंदर वैसे कोई बिजनेस नहीं मिलता. वी आर वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि हमें इस छोटे अमाउंट के अंदर इतना बड़ा बिजनेस मिल रहा है. और बस अब 2 ही स्टेप है यार कि you have to we have to generate your ID and we have to get the shopping done. और the best part is ID generation is free of cost. तो अपनी आधार कार्ड की डिटेल्स मुझे सेंड कर and I'll just generate your ID and we will again connect on the call and look forward for the shopping. सीधा ID कार्ड मंगवाना है, डिटेल्स मंगवानी है, शॉपिंग करनी है और आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करना है. ठीक है, अब इसमें एंड ऑफ द में चाहे हम कितना भी अच्छा करें, इन सम केसेस वी विल गेट फ्यू क्वेश्चंस. ठीक है, अब मैं आपके साथ आगे डिस्कस करने वाला हूं कि जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं उसमें से कौन से जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं और कौन से क्वेश्चन सिर्फ इट इज जस्ट अ वॉल टू हाइड इट इज जस्ट अ वॉल फॉर द गेस्ट टू हाइड हिमसेल्फ behind his own actual reasons. Okay, some people I experienced while giving presentation I have asked with my okay, so these are basic questions which if one says ki yes I will do but they don't, then how to talk further. Okay, these are few points जिसके ऊपर अब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, so I have got few questions जो मुझ तक पहुंचे हैं. तो ये क्वेश्चंस के अंदर आई बिलीव सबके आंसर्स आ जाएंगे. जो मेरे को अभी स्लाइड के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं मैं उनको पहले पूरा कर देता हूं. ठीक है, एक्सपीरियंस तो पेरेंट्स वाला एक क्वेश्चन है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे. ओके, आई डू नॉट वांट टू शॉप राइट नाउ. ठीक है, जैसे अगर कोई बोलता है आई कांट डू शॉपिंग और आई डू नॉट वांट टू शॉप राइट नाउ, इसका आंसर बहुत सिंपल है. इसका मतलब वो जो वाला पीछे वाला जो पार्ट था जो उसके ड्रीम से आपको कनेक्ट करना था वो नहीं हुआ है. ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं, अगर आप देखो ये जो सवाल है आई डोंट वांट टू शॉप राइट नाउ, ठीक है, और मुझे अभी शॉपिंग नहीं करनी मैं बाद में करूंगा, ये सारे सवाल एक गेस्ट तभी पूछता है. दीज आर द रीजंस. मैंने बताया ना, सैंडल बेचने वाला जो सेल्समैन है वो उसको गेस्ट के क्वेश्चंस पे काम नहीं करना चाहिए. गेस्ट ने वो क्वेश्चन क्यों बोला उसके ऊपर काम करना चाहिए. ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच गेस्ट विल टेल यू व्हेन दे आर नॉट कन्विंस्ड टू डू द बिजनेस. अगर वो कन्विंस्ड होंगे बिजनेस के लिए तो आप उनको प्रोडक्ट ना भी दो, 3,000 रुपए वो फिर भी दे देंगे. आप समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि वो उस चीज को लेकर कन्विंस है. ठीक है, तो जो ज्यादातर सवाल होते हैं, ठीक है, वो इस तरीके के होते हैं. अब मैं आपको एक फॉलोअप, अब मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से फॉलोअप करना है. मान के चलो अभी जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने पुट फॉरवर्ड करने वाला हूं, एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास में, मैं प्रायोरिटी उन क्वेश्चन को दूंगा जो मेरे पास पहले से आ चुके हैं. ठीक है, तो मेरे पास पहले से ही बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं पहले उन पे डिस्कशन कर लेता हूँ. आई होप कि उन क्वेश्चंस के अंदर ही आपके अभी जो सवाल आप लोग चैट बॉक्स में डाल रहे हो आपको उनके जवाब भी मिल जाएंगे. ठीक है, तो पहले तो आपको ये समझना है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर नॉट एक्चुअली द क्वेश्चन, दे आर जस्ट द रीजन बिहाइंड द गेस्ट इज नॉट कन्विंस्ड. तो गेस्ट उस बात को छुपाने के लिए आपको ये बोलता है, जो भी रीजन देता है कि मुझे अभी शॉपिंग नहीं करनी. एक गेस्ट जिसने आपके साथ इतने बेहतरीन तरीके से ड्रीम शेयर किए हैं, उसके बाद आपने उसकी ड्रीम की वैल्यू क्रिएट की है, उसके बाद आपने उसकी ड्रीम की टेस्टिमनी शेयर की है, अपने ड्रीम शेयर किए और उसने बोला यस आई विल डू द बिजनेस. आपको वो ये सारी प्रॉब्लम कभी नहीं बोलेगा कि मेरे पास 3,000 की या फिर वो. ठीक है, अब मैं आपसे एक सिनेरियो शेयर करने वाला हूँ. ठीक है,
आपने पूरा फॉलोअप कर दिया है, ठीक है, आपने पूरा फॉलोअप कर दिया है, उसके बाद आपको गेस्ट ऐसे ऐसे रीजंस बोल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ठीक है। पहले तो मैं इस बात पे आऊंगा कि अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है, हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी इन योर फॉलोअप, मतलब रिजल्ट क्लोज करने के अंदर अर्जेंसी कैसे क्लियर करनी है। मैं आपको वही शेयर करूंगा जो मैं खुद फील्ड के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल टुडे आई डिड वन फॉलोअप, ठीक है, मैंने एक फॉलोअप किया, उसके अंदर मुझे अर्जेंसी क्रिएट करनी थी, तो व्हाट आई टोल्ड कि सर आपकी अगर जैसे उसने मुझे स्ट्रेटली नहीं बोला कि मुझे अभी नहीं करना, मैं 1 महीने बाद करूंगा या फिर बाद में करूंगा, यू नो, मुझे समझ में आ गया था कि वो बाद में शायद करने की सोच रहा है, ठीक है। तो मैंने उसको क्या बोला कि सर एक बात बताइए आप, बिजनेस का मतलब 2 ही चीज होती है, पैसा और टाइम। बिजनेस इज ऑल अबाउट मनी एंड टाइम। तो अगर आप किसी भी बिजनेस को कर रहे हैं, डू यू थिंक बोथ मनी एंड टाइम आर गोइंग टू प्ले अ वाइटल रोल इन इट? देखो, जितनी बार गेस्ट के मुंह से आप हाँ निकलवाओगे, उतनी बार उसकी साइकोलॉजी हाँ बोलने की होगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू नो। आपको किसी भी तरीके से गेस्ट के मुंह से हाँ हाँ निकलवाना है, ठीक है। तो मैंने उससे क्या पूछा कि डू यू रियली, पहले मैंने बोला कि किसी भी फॉलोअप के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर टाइम एंड मनी प्लेज अ वाइटल रोल। डू यू रियली थिंक टाइम एंड मनी प्लेज अ वाइटल रोल इन एनी बिजनेस? उसने बोला यस सर। तो मैंने बोला सर अगर आपकी जॉब, आपको 2 ऑप्शन दिया जाए कि आप इस मंथ 15 से जॉब कर सकते हो और आपको 15 डे का पे आउट मिल जाएगा, और नेक्स्ट मंथ 1 तारीख से जॉब कर सकते हो, लेकिन इस मंथ 15 डेज का पे आउट नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? When you will join your job if you are free right now? So he will be like, sir मैं तो जॉब अभी से ही करूंगा फिर। मैंने बोला exactly, because you value time, because you know you are going to get money in exchange of time. Don't you think जॉब से ज्यादा वैल्यू बिजनेस के अंदर होती है टाइम की? वो बोलेगा यस सर। तो अगर आपको सेम ऑफर मिले कि अगर आप बिजनेस आज शुरू कर सकते हो और बिजनेस कल शुरू कर सकते हो, तो what is when actually are you going to start the business? What is the best time to start the business? वो खुद ही बोलता है। देखो, मेक श्योर आपका कम्युनिकेशन, फॉलोअप इज ऑल अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस। एक बुक आपको मैं यहाँ रेफर कर रहा हूँ, क्वेश्चंस आर द आंसर। आप इस बुक को जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़ें। मेरा जो भी मैं अभी आपको फॉलोअप के आंसर देने वाला हूँ, इट इज ऑल, मैं कोई भी सवाल का आंसर नहीं दूंगा, मैं गेस्ट से ही उल्टा सवाल पूछूंगा, गेस्ट ही अपने सवाल का जवाब खुद देगा। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ फॉलोअप। फॉलोअप इज ऑल अबाउट आस्किंग अ राइट क्वेश्चन। फॉलोअप इज ऑल अबाउट आस्किंग अ राइट क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने उसको बोला कि आपको क्या लगता है जॉब से ज्यादा वैल्यू टाइम की बिजनेस के अंदर? उसने बोला यस सर, जो बिजनेस तो बहुत सारी जॉब टाइम की होनी चाहिए। मैंने बोला एग्जैक्टली सर, दैट्स व्हाट। आप इस महीने के 15 डेज के अंदर जो बिजनेस कर पाएंगे, आपको नहीं लगता अपने लाइफ टाइम के लिए आप वो 15 डेज खो देंगे? सर अब मतलब गेस्ट का मैं फॉलोअप कर रहा था, उसकी अर्जेंसी और मनी दोनों प्रॉब्लम थी। वो अगले महीने इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि अगले महीने उसकी सैलरी आ रही थी। फिर मैंने अगला पॉइंट क्या रखा, सर आपको पता है जो लोग लाइफ के अंदर, डू यू नो दोस पीपल who are really sincere in their life, who are really focused in their life? I have seen so many people in this lockdown, you know, they have paid for online training classes, for online Zuma classes, for online guitar classes, for online Java classes. They have paid 10,000 rupees so that, you know, they don't waste their time in lockdown. लोगों ने हजारों रुपए देकर इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन किए हैं, कोर्सेज खरीदे हैं, so that they spend daily 1 or 2 hours of their time and they become a better person. They start learning something and they stop wasting their time. Do you think अगर हमें बड़ा बनना है, if we want to become a better person, don't you think even we should do something like that? उसका जवाब आएगा yes sir, even we should do something like that. Exactly sir, this is what I wanted to make you understand. You know, here at least we are not paying for any courses. The product price which we are paying, gonna pay 3,000 rupees or 9,000 rupees, we are going to get product which we can anyways use this month or next month, but the next 15 days we are going to get focused towards the goals which you told me 15 minutes before. जो आपने मुझे सपने बताए थे, हम उन सपनों के ऊपर काम करना अभी से शुरू कर सकते हैं, you know. और अभी आप जैसा हमने डिस्कस किया, any successful man he first values the टाइम, और डेली हमारा जो 1-2 घंटा वेस्ट हो रहा है आफ्टर जॉब, दैट वी कैन यूटिलाइज एंड वी कैन गेट इनटू अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अर्जेंसी भी क्रिएट कर दी और मनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। बेसिकली इन दिस वन क्वेश्चन आई हैव आंसर्ड 2 क्वेश्चंस। यू नो, ऑफ कोर्स दे कांट पुश मच टाइम, ठीक है। हमें वैसे भी 1 or 2 आवर्स ही देना है, ठीक है। चलो अब कोई इसका ये क्वेश्चन आगे है टाइम वाला, आप अभी क्वेश्चंस मत लिखो, मेरे पास बहुत क्वेश्चंस हैं,
ठीक है, और वो टाइम के साथ अपने आप आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है. वी नीड टू चेक बिफोर वी स्टार्ट. ओके, ऑफ कोर्स सर, जैसे बहुत सारे बोलते हैं हमें चेक करना है बिफोर स्टार्ट करने से पहले. देखो ये सारे जो सवाल है ना, मुझे चेक करना है स्टार्ट करने से पहले, ये सब सिर्फ तब आते हैं जब आपने टीम एलिट, आप सोचो मैं आपसे ये सारी बात कर रहा हूं, मैंने आपका पूरा फॉलोअप किया, ठीक है, मैंने बोला सर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टीम एलिट का आप हिस्सा बनने वाले हो, ठीक है, यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ टीम एलिट. टीम एलिट आपकी हर चीज का ध्यान, इससे पहले मैं आपकी ड्रीम्स की बात कर, तो क्या आप मुझे बोलोगे आई नीड टू चेक? ऑफ कोर्स आप नहीं बोलोगे, है ना. तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी. ये जो सवाल है ना, आई नीड टू चेक, मैं सोचकर बताता हूं, इसका मतलब जो फॉलोअप था ना, जो मैंने अभी आपसे फर्स्ट 45 मिनट्स मैंने आपसे डिस्कशन किया है, उस 45 मिनट्स का जो कम्युनिकेशन, वैसे हमें 45 मिनट्स लगा क्योंकि मैं आपको एक एक बात दो बार रिपीट कर रहा था. इट इज एक्चुअली 15 मिनट्स कम्युनिकेशन. अगर उस 15 मिनट के कम्युनिकेशन में दम नहीं था तो आप ऐसे सवाल फेस करने वाले हो. सो इफ यू वांट टू किल ऑल सच क्वेश्चन, इन सवालों का वैसे कोई जवाब नहीं होता. यू नो, आप जवाब दोगे भी तो गेस्ट बोलेगा हाँ हाँ अच्छा बात है, अच्छा बात है, मैं आपको कल बताता हूँ. यू नो, दीज क्वेश्चंस आर जस्ट अ वॉल for the guest to hide. The reality is he is still not inspired enough to work on his goal. ठीक है, तो जो मैंने आपको पहले 15 मिनट्स का कम्युनिकेशन बताया ना, आप उसके ऊपर काम करो, जो मैंने आपको 45 मिनट समझाया है. ठीक है, आई मेक श्योर कि रिकॉर्डिंग भी आप तक पहुंच जाए पहले 15 मिनट्स की. वो रिकॉर्डिंग आप किसी को फॉरवर्ड ना करें, वो आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होगी, लेकिन आप उसको थोड़ा और अच्छे से समझें. ठीक है, और मैं आपको यही बोलूंगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो अभी आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, इट इज जस्ट बिकॉज द गेस्ट इज स्टिल नॉट इंस्पायर्ड. ठीक है, सो आई नीड टू चेक बिफोर वी स्टार्ट. चलो, अगर फिर भी ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या जवाब देना है? बिल्कुल यार, यू नो, इवन आई वाज, आप एक अपनी डायरी के अंदर एक फॉर्मूला लिख लो, अभी लिख लो, फील, फेल्ट एंड फाउंड. फील, फेल्ट एंड फाउंड. चाहे जवाब सवाल जो भी हो, whatever the question is going to be, this is the answer. Feel, felt and found. पहले गेस्ट के सवाल को फील करो कि जब आपके साथ वो सिचुएशन हुई तो क्या हुआ. फील, फेल्ट एंड फाउंड. ठीक है, अब इसको मैं इस सवाल से कनेक्ट करता हूं. वी नीड टू चेक बिफोर वी स्टार्ट. तो मैं क्या बोलूंगा एग्जैक्टली भाई, जब मैं इस बिजनेस को शुरू कर रहा था, नाउ आई एम शेयरिंग माई फीलिंग्स which is called feel, felt and found. ठीक है, when I was starting this business, even I was, मेरा भी यही था, you know, even I was thinking that first I will check and I will start. So I really appreciate your decision. मैंने उसकी डिसीजन की बेइज्जती नहीं की कि क्या चेक करना है, क्यों चेक करना है, अरे सब कुछ तो मैंने बता दिया. You know, this is not the thing which you have to actually, you know, shoot the very next moment. The actual thing which you should tell is, very good sir, not an issue. मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, ठीक है, तो मैं भी यही सोच रहा था कि पहले मैं चेक करूंगा. एग्जैक्टली, तो बहुत अच्छा सोच रहे हो आप. वैसे आप क्या चेक करना चाहते हो? रेस्पेक्ट हिज डिसीजन. ठीक है, रेस्पेक्ट हिज डिसीजन. वैसे आप क्या चेक करना चाहते हो, है ना, क्योंकि मैंने भी अपने लेवल पे काफी चीजें चेक करी थी, यू नो, बट मेरे को बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ. तो एट द एंड ऑफ द डे मेरा सारा कंफ्यूजन मेरे अपने फ्रेंड से ही दूर हुआ, जिसने मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताया था, है ना. तो आप अपना कोई भी सवाल है आप मेरे सामने पुट फॉरवर्ड कर सकते हो, इफ यू आर कंफर्टेबल इनफ, एंड आई एम श्योर आपके जो भी चीज आप चेक करना चाह रहे हो आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा, है ना. और गेस्ट को थोड़ा स्पेस दो. ठीक है, आप बोल दो उसको कि अच्छा सर आप, वो बोलेगा नहीं मेरे को ऑनलाइन चेक करना है, थोड़ा स्टेटस चेक करने ना. वेस्टीज के ऑनलाइन रिव्यूज बहुत ज्यादा अच्छे हैं. ठीक है, तो आप उसको बोलो कि नो प्रॉब्लम सर, ठीक है, आप ऑनलाइन रिव्यूज चेक कर लीजिए, मैं भी आपको अपनी तरफ से कुछ लिंक शेयर कर देता हूँ. ठीक है, अभी लालची मत बन जाओ, नहीं नहीं सर अभी बताओ क्या है, मैं अभी आपकी सारे सवालों का जवाब नहीं. आपने क्या बोला कि आपने बता दिया कि मैंने चेक किया था और मैंने डिस्कस भी किया था, एंड आई गॉट रियली गुड रिव्यूज एंड देयर आफ्टर आई स्टार्टेड दिस बिजनेस. ठीक है, तो अब वो भी वही करेगा. ठीक है, मोस्टली वही करेगा. ठीक है, तो आपको अब आपने क्या बोला कि ठीक है सर वी विल कनेक्ट अगेन इन द इवनिंग. ठीक है, आपने एक सेकंड मीटिंग का टाइम फिक्स कर लिया. ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू कैन डू. अगर आपने when the guest said I need to check before, लेकिन आप हमेशा याद रखो वो ये सवाल बोलेगा ही नहीं अगर आपने फॉलोअप सही किया है. तो अगर बोल रहा है तो दिस इज हाउ यू हैव टू टैकल दिस पर्टिकुलर. I can't buy the products now. ठीक है, अगला सवाल है I can't buy the products now. ठीक है, अभी मैं प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता. अगेन
अगर वो आपको ये बोल रहा है अभी मैं प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता, मतलब वो अभी बिजनेस करने के लिए रेडी नहीं है। इसका सवाल मैंने पहले ही आंसर में दिया था अर्जेंसी वाले में, ठीक है। अगर आपने उसकी ड्रीम के ऊपर बहुत अच्छे से बात करी है, आपने उसके गोल के ऊपर बहुत अच्छे से बात करी है, तो वो ये सवाल ही पुट फॉरवर्ड नहीं करेगा, ठीक है। मतलब मान के चलो, अभी फिर भी मान के चलो उसने पुट फॉरवर्ड कर दिया और आपने पहले ये बात नहीं करी थी, तो आपको अगेन फील फेल्ट एंड फाउंड वाली बात रखनी है। एग्जैक्टली सर, मैंने जब इस बिजनेस को पहली बार सुना था, मान के चलो पीपीटी हो चुका है, आड़ा टेढ़ा आपने फॉलोअप कर दिया, उसके बाद में आपको ये सवाल आया कि यार अभी मैं नहीं खरीद सकता, अभी मैं ये प्रोडक्ट नहीं ले सकता, मैं अगले महीने लूंगा, अभी मुझे इन सारे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं, मेरे घर पे सारे प्रोडक्ट्स हैं। मैंने बोला यार क्या बात है, मैंने जब बिजनेस शुरू किया था यार यही एग्जैक्ट इशू मुझे भी फेस हुआ था, है ना। और क्या बोलते हैं, फिर मैंने एक सही डिसीजन लिया और उसके वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंच पाया हूँ, ठीक है। तो मैं वो जरूर शेयर करना चाहूंगा, ठीक है। बिल्कुल तू सही सोच रहा है, वैसे जो भी सोच रहा है, क्योंकि अब जब प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है तो प्रोडक्ट शॉपिंग करने की वैसे क्या ही जरूरत है ना। और मैं तेरे डिसीजन के साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ, है ना। बट मैं तेरे से ये पूछना जरूर चाहूंगा कि अब यहाँ से आपको टॉपिक को थोड़ा चेंज करना है, ठीक है। वैसे इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट के अलावा जो बिजनेस है, ठीक है, तुझे क्या लगता है बिजनेस के क्या बेनिफिट्स हैं और कोई इंसान इस बिजनेस को क्यों कर सकता है? रिमेंबर, आई एम जंपिंग बैक टू दैट क्वेश्चन। उसने बोला यार बिजनेस वैसे अच्छा है, बिजनेस से रेसिडुअल सोर्स ऑफ इनकम आ सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। आई एम आंसरिंग टू द क्वेश्चन, कौन सा? आई कांट बाय द प्रोडक्ट्स नाउ, ठीक है। तो मैं पहले इस सवाल का जवाब देने से पहले क्या किया, मैंने उसको जवाब को एक्सेप्ट कर लिया, सही बोल रहा है यार, अभी क्या ही जरूरत है, बीच का महीना चल रहा है, अभी प्रोडक्ट तो तेरे पे वैसे भी सारे होंगे, तू एकदम सही बोल रहा है ना। चल वैसे अगर मैं प्रोडक्ट को साइड रखूं, बिजनेस की बात करूं अगर मैं तेरे से, तो व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग वेस्टीज? वेस्टीज करने के क्या बेनिफिट्स हैं? या फिर एक इंसान, एनी पर्सन हु डू अ वेस्टीज बिजनेस, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग वेस्टीज बिजनेस? ना वो बोलेगा कि एक्स्ट्रा इनकम, ऐसा वैसा, यू कैन यूटिलाइज योर वेस्ट टाइम इनटू प्रोडक्टिव, यू कैन जनरेट अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। आप बोलोगे बहुत अच्छी बात है। अगर तू बिजनेस करेगा तो व्हाट विल बी द रीजन? आई एम रिपीटिंग द सेम अगेन ओल्ड स्टफ, ठीक है। अगर तू बिजनेस करेगा तो व्हाट विल बी द रीजन फॉर दोस, इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस, व्हाट विल बी द रीजन टू स्टार्ट द बिजनेस? अगेन ही विल टेल हिज रीजंस। अच्छा यार, वैसे व्हाट आर द गोल्स? बहुत अच्छा लगा तेरे इन रीजंस को सुन के यार, एग्जैक्टली बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू रिप्लाई एंड आई एम गोइंग टू आस्क, वैसे यार तेरे लाइफ के अंदर गोल्स क्या है? व्हाट आर योर ड्रीम्स इन लाइफ, ठीक है, व्हाट आर योर ड्रीम्स इन योर लाइफ? तो अब वो मेरे से मैं उससे उसको ड्रीम बताऊंगा, अब फिर मैं उसको अपनी ड्रीम, फिर मैं उसके अगेन जैसे मैंने पहले किया था, उसके ड्रीम्स की मैं वैल्यू क्रिएट करूंगा, और ड्रीम्स की वैल्यू क्रिएट करने के बाद में मैं उसको अपने ड्रीम्स बताऊंगा। अपने ड्रीम्स बताने के बाद में उसके जो ड्रीम्स हैं उसकी टेस्टिमनी शेयर करूंगा, और मैं फिर उसको बोलूंगा कि डू यू रियली थिंक तेरे ड्रीम्स इतने बेहतरीन हैं, इतने अच्छे हैं, तू रियली चाहता है कि 3,000 की एक शॉपिंग पेंडिंग रख के तू इन ड्रीम्स को होल्ड करना सही है ना। यार ये प्रोडक्ट्स आज नहीं तो कल तो यूज हो ही जाएंगे, लेकिन तुझे नहीं लगता हम 15 दिन डिले कर देंगे? यार तेरे इतने अच्छे गोल्स हैं, तू इतनी अच्छी कार लेना चाह रहा है, और लाइफ में सपने उसी के पूरे होते हैं जो समय की सही वैल्यू रखते हैं। तू मानता है या नहीं मानता इस बात को? वो बोलेगा हाँ यार मैं मानता हूँ। तो तुझे नहीं लगता जो इंसान अपने गोल्स के लिए काम करता है, जो इंसान अपने ड्रीम्स के लिए काम करता है, वो एक एक घंटे की वैल्यू करता है, और यहाँ तो यार 15 दिन की बात है। डू यू रियली थिंक सिर्फ 3,000 रुपए के प्रोडक्ट के लिए हमें 15 दिन वेट करना चाहिए? बोलेगा नहीं यार। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड यार, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना है, ठीक है, आपको बिजनेस के लिए कन्विंस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा प्रोडक्ट से किस तरीके से मैं बात को गोल पे लेकर गया, और गोल से मैंने फिर उसको बिजनेस के ऊपर कन्विंस किया। मोस्ट ऑफ द लोग प्रोडक्ट की तारीफ करने लगते हैं, सर अरे सर प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। अरे अच्छे हैं, आपकी चप्पल बहुत अच्छी है, वो शोरूम में जो बंदा जैकेट लेने गया था वो जैकेट बहुत अच्छा है, लेकिन उसको चाहिए ही नहीं, तो आप कितनी भी तारीफ कर लो, आप समझ लो। सो दैट इज द पॉइंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको कनेक्ट किसी और चीज से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको जरूर समझनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ड्यू टू लॉकडाउन देयर इज शॉर्टेज ऑफ मनी, ठीक है। ये बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है। ड्यू टू लॉकडाउन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ मनी, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज अ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। आपको गेस्ट को ये बात समझानी है, जस्ट होल्ड ऑन, बी ऑनलाइन, इजी बॉय। सॉरी मेरा डॉग आ गया था। हाँ, तो आपको गेस्ट को ये बात समझानी है
कि यार तू बिल्कुल सही बोल रहा है, यू नो मेरे को भी पहले ऐसा ही लग रहा था जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ कि तो दिस इज नॉट द, मतलब मैं इस टाइम पे बिजनेस कर पाऊंगा। अगर आपने लॉकडाउन में बिजनेस स्टार्ट किया तो आप अपनी टेस्टिमनी शेयर कर सकते हो ये बोल के कि यार तू बिल्कुल सही बोल रहा है। मुझे भी ऐसा लगा कि लॉकडाउन के अंदर कुछ नहीं हो पाएगा, बट मैंने वहीं पे सोशल मीडिया पे देखा कि लॉकडाउन के अंदर लोग, कुछ लोग हैं जो सो के मूवी देख के टाइम निकाल रहे हैं, और कुछ लोग हैं इस बिजनेस को शुरू किया और एक बहुत ही अच्छे लेवल तक अपने बिजनेस को लेकर गए, ठीक है, और आज बहुत ही अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अब आप लॉकडाउन की कुछ टेस्टिमनी शेयर करें, जैसे हमारे बीच में पूजा जी हैं जो डायरेक्टर बनी है शिवम जी की टीम से, उनकी बहुत अच्छी टेस्टिमनी है, आप उस टेस्टिमनी को शेयर कर सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर इस बिजनेस को शुरू किया है, ठीक है, और फिर आप इनको बोल सकते हैं कि सर देखो 3,000 रुपए का तो एक महीने के अंदर वैसे हमारे घर के अंदर राशन आ जाता है, ठीक है, 3,000 रुपए। अब आप ना 3,000 रुपए से बताओ क्या होता है सर। 3,000 रुपए आपको पता है, एक इंसान जब पार्टी देने जाता है तो 3,000 तो कभी कभार क्या बोलते हैं, पार्टी में एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3,000 रुपीज सर। किसी त्योहार के अंदर 3,000 रुपए की तो मिठाइयां आ जाती हैं घर के अंदर। उतने कम अमाउंट के अंदर हमारा एक ऐसा बिजनेस शुरू हो रहा है जो हमें इस लॉकडाउन के अंदर हमें टाइम की प्रोडक्टिविटी निकाल के दे सकता है, ठीक है। इट कैन मेक अस यूटिलाइज दिस वेस्ट टाइम इनटू समथिंग प्रोडक्टिव, और सिर्फ हमें 3,000 रुपए की शॉपिंग करनी है। तो इस तरीके से आप लॉकडाउन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको टेस्टिमनीज यूज करना है। अब आपको ये समझना बहुत जरूरी है, आपको टेस्टिमनीज पहले पता होनी चाहिए टेस्टिमनीज को यूज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी नो अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये वाला फॉलोअप तो बिल्कुल अलग है ना, फील फेल फाउंड ही होगा इसमें भी। अरे सर मैं भी, मेरे पापा ने भी, जैसे मैं इधर जो यूज करता हूँ, मेरे फादर ने पहले एक नेटवर्क मार्केटिंग करी थी जब मैं 10th में था। तो यहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस यूज करता हूँ कि सर अरे सर मेरे एग्जैक्टली सर मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत पहले ही देख लिया था, और मैं भी, मुझे ऐसा लगता था कि यार दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी और मेरे को ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट मैंने क्या ऑब्जर्व किया, यू नो इट इज नॉट अबाउट द प्रोसेस, इट इज ऑल अबाउट द रिजल्ट। कोई भी इंसान अपने लाइफ के अंदर जो काम करता है, यू नो वो प्रोसेस को देखकर नहीं करता है, वो रिजल्ट्स को देखकर करता है, ठीक है। मैंने बहुत सारे जिम वालों को देखा है जिनको सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है, जिनको यू नो जिम जाना में डाइट करना पसंद नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बिगेस्ट एग्जांपल इज विराट कोहली। उसको डाइट करना पसंद नहीं था, उसको जिम जाना पसंद नहीं था, बट यू नो ही वाज नॉट फोकस्ड ऑन he was not focused on the input which is given, he was focused on the output what he was giving, है ना। बहुत सारे लोग हैं वेस्टीज के अंदर, ठीक है। अब आप अगेन यहाँ पे आपको टेस्टिमनी देनी है, और ये बात करने से पहले आपको ये श्योर करना है कि सर चलो सर भूल जाते हैं वेस्टीज से इनपुट को लेकर। लाइक जैसे क्वेश्चन ये था, ऑलरेडी नो अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पहले से मालूम है। तो पहले तो आपने यहाँ ये बोला कि मुझे भी मालूम था, फील फेल्ट एंड फाउंड, लेकिन मुझे लगा क्या बोलते हैं ये क्वेश्चन, हाँ और भी लंबा है थोड़ा, 2 मिनट। शिवम जी देखो, जो ये सवाल है, आई ऑलरेडी नो अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। हाँ, तो इसके 2 टाइप है। पहला है ये एक इनविटेशन के टाइम पे पता चले, और दूसरा है फॉलोअप के टाइम पे पता चले, ठीक है। मोस्टली आंसर दोनों का सेम ही है, ठीक है। अगर आपको प्रेजेंटेशन से पहले पता चले वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, और बाद में पता चले, ठीक है। मैं अपना यहाँ पे क्या आंसर देता हूँ इस क्वेश्चन का, दैट जब कोई मुझे बोलता है अरे मुझे ये सब पहले से पता है, तो मेरा सवाल इसमें आपको, देखो जब कोई इंसान ये बोलता है कि यार मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पहले से पता है, मैं ये सारी चीजें जानता हूं, तो गेस्ट के एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं? गेस्ट के एक्सपेक्टेशंस ये होते हैं कि अब मेरी एनर्जी लो हो जाएगी और मेरा यू नो मैं घबरा जाऊंगा। गेस्ट ऐसा सोचता है, ठीक है। मैं जब इसको बोलूंगा अरे मैंने ये सब किया हुआ है, तो सामने वाला डर जाएगा, या फिर सामने वाला ऐसा बोलेगा अरे इसको तो सब पता है। उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? तो आपको यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट करना है। जैसे गेस्ट बोले यार मुझे सब कुछ पता है, ऑलरेडी नो अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने सब देखा हुआ है, तो आपको करना है क्या बात कर रहा है, तुझे पहले से पता है, मतलब यू हैव टू डबल योर एक्साइटमेंट, है ना, कि क्या बात कर रहा है, तुमको सब कुछ पहले से पता है सच में। बोलेगा, अब वो कंफ्यूज रहेगा, यार ये इतना एक्साइट क्यों हो रहा है, तो तू कहाँ काम कर रहा है? तो आपको क्या पूछना है, वेयर आर यू वर्किंग देन, तू कौन सी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा है? तो उसका जवाब होगा नहीं मैं काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है। क्या बात कर रहा है? तुझे पता है
लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा है, और मैं यहाँ पे अपने आप को कोस रहा था, काश ये इंडस्ट्री मुझे पहले समझ में आ गई होती, ठीक है। क्योंकि आपने क्या बोला है कि हाँ, अगर आपने उसको ये बोला है कि मुझे भी पहले से पता है, तो आप उसको ये बोल सकते हो यार काश मुझे पहले समझ में आ गई थी, या फिर अगर आप बोल सकते हो या फिर मुझे काश पहले मिल गई होती। तो आपको यहाँ पे उसको क्या बोलना है, मैं तो ये सोचता हूँ कि काश मुझे पहले मिल गई होती, और तुझे पहले से पता है और तूने अभी तक इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया। भाई इसके तो दो ही कारण हो सकते हैं, आइदर यू हैव हाफ इंफॉर्मेशन और यू हैव रॉन्ग इंफॉर्मेशन। क्योंकि तेरे जैसा बंदा, पर्सन लाइक यू, इफ ही कम्स इन दिस बिजनेस, ही कैन एक्चुअली डू वंडर्स इन दिस बिजनेस। और अगर तू इस बिजनेस से दूर है तो इसकी एक ही वजह हो सकती है, आइदर यू आर हैविंग हाफ इंफॉर्मेशन और यू हैविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन। ये 2 पॉइंट हमें बोलने होते हैं, फिर उससे बोलना है, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा, अच्छा ऐसा क्या, और फिर मैं उसको क्या बोलूंगा कि अगर तेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन इस बिजनेस को लेकर आ जाए तो आई एम श्योर यू कैन डू वंडर्स इन दिस बिजनेस। बता तुझे क्या पता है इस बिजनेस के बारे में। अब उसका मॉडल वैसे डाउन हो चुका है, क्योंकि आपने ये बात कमिट कर दी है कि भाई तेरे पास या तो आधी इंफॉर्मेशन है या नो इंफॉर्मेशन है, मतलब या फिर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर आधी इंफॉर्मेशन है, और ये आपने पूरे कमिटमेंट, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बोला है, तो इधर क्या होने वाला है, इधर अब वो गेस्ट कंफ्यूज रहेगा। अब आप उससे पूछो कि भाई क्या मालूम है, कौन सी कंपनी में तुमने बिजनेस किया है, बोलेगा नहीं मैंने बिजनेस नहीं किया, मैंने सुना है। ओ माय गॉड, तूने सुना है, चल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्या सुना है। अब आप उससे पूछो और आपको समझ में आएगा कि उसने सुना भी किसी तीसरे इंसान से, उसने प्रेजेंटेशन कभी नहीं सुनी है, ठीक है। तो आपको बोलना है यार तू इतनी कम इंफॉर्मेशन के ऊपर तू इतना बड़ा डिसीजन ले रहा है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री को गिव अप कर रहा है ना। फिर आपको यहाँ पे वेस्टीज की कुछ टेस्टिमनीज उससे शेयर करनी है ना, और फिर आपको उसको कन्विंस करना है, ठीक है। तो सबसे पहला है, गेस्ट के दिमाग में ये बात बैठनी चाहिए कि यार जो बात मुझे पता है वो एक्चुअली गलत है। तो अगर आपने वो कर लिया तो आगे का काम बहुत ईजी है। तो यहां तक के कम्युनिकेशन में गेस्ट के दिमाग में बात चली जाएगी, यार एक्चुअली मुझे कुछ नहीं पता है ना। उसके बाद आप उससे कुछ फैक्ट एंड फिगर शेयर करो, तो को मालूम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, वर्ल्ड वाइड का कितना बड़ा नेटवर्क है, इंडिया में कितने सारे लोग कर रहे हैं, है ना। सिर्फ तेरे को एक इंसान ने ऐसा बोल दिया उसके खिलाफ के तूने इतना बड़ा जजमेंट ले लिया, यार तू क्या बात कर रहा है, तू एक बहुत ही मैच्योर्ड इंसान है, तू बहुत ही एक सेंसिबल इंसान है, और तेरे पास खुद का एक IQ है। मैं जानता हूं, मतलब आपको क्या बोलना है, मैं जानता हूं तू कोई भी लाइफ के डिसीजंस सिक्के के दोनों पहलुओं को देख के करता है। यू लुक ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन एंड देन यू टेक अप अ डिसीजन इन योर लाइफ। यू नेवर टेक अ डिसीजन जस्ट लाइक दैट इन योर लाइफ, है ना। तो मैं चाहूंगा तू एक बार इस बिजनेस को पूरी तरीके से समझे, ठीक है, और फिर इस बिजनेस के ऊपर एक डिसीजन दे, ठीक है। तो यहां तक आपने उसका माइंड मेकअप किया, अब आप उसको बिजनेस के बारे में दोबारा से अच्छी तरीके से समझाओ एंड देन यू गेट द लॉग इन डन, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग बिफोर मीटिंग कि भाई ये क्या है। देखो ये तो इनविटेशन वर्कशॉप में क्लियर होगा, ये फॉलो वर्कशॉप का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये वेस्ट ऑफ टाइम है, वर्थलेस है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं वेस्ट ऑफ टाइम है, वर्थलेस है, ठीक है। तो आपको देखो सबसे ये वो बोलते हैं जो एक्सट्रीम लेवल पे नेगेटिव है गेस्ट, ठीक है। और जैसे आपने मीटिंग खत्म हुई, मीटिंग खत्म होते ही आपने उसको फोन किया, तो वो फॉलोअप के बाद ये कोई नहीं बोले, ये आपको लोग मीटिंग के तुरंत बाद ही बोल सकते कि यार ये तो वेस्ट ऑफ टाइम, वर्थलेस है यार, है ना। तो आपको उसको क्या बोलना है, यार हो सकता है तेरी बात सही हो, कभी भी गेस्ट की बात नहीं काटनी है। आपका गेस्ट बोले प्रोडक्ट खराब है, आप बोलो हो सकता है शायद तेरे पास कोई खराब प्रोडक्ट आ गया होगा, वैसे कौन सा प्रोडक्ट लिया था तूने। कभी भी गेस्ट की और कस्टमर की बात नहीं काटनी चाहिए, ये बात अपने जहन में डाल लो, और पॉजिटिव चीजें हमेशा मोस्ट पीपल यूज करके बोलनी चाहिए, ठीक है। तो गेस्ट ने बोला वेस्ट ऑफ टाइम एंड वर्थलेस है, तो आपको इधर क्या बोलना है कि हो सकता है भाई जो तू सोच रहा है वो सही हो, बट तुझे ऐसा क्यों लगता है, ऑलवेज आस्क व्हाई। अब वो इधर अटक जाएगा, क्योंकि बिकॉज ये इंडस्ट्री वर्थलेस और वेस्ट टाइम ऑफ टाइम है ही नहीं। अब वो अपने आड़े टेढ़े रीजन देगा, अभी एक्चुअली बहुत सारे लोग मैंने देखा है ना, इधर ऐसे आते हैं। तो भाई तुझे नहीं लगता इस तरीके से तो इंजीनियरिंग भी वेस्ट ऑफ टाइम, वर्थलेस है, और प्लस वेस्ट ऑफ मनी भी है, क्योंकि इंजीनियरिंग तो बहुत सारे लोग आते हैं बट एट द एंड कितने प्रोडक्टिव इंजीनियर्स पास आउट होते हैं। तो इधर वो एक पॉज ले लेगा, है ना। आपको उसको क्या समझाना है कि यार जो तू बोल रहा है वो सही है, हर चीज के अंदर। आपने उसको क्या बोला, भाई तू जो बोल रहा है वो सही है, लेकिन तू उन लोगों का एग्जांपल लेकर बोल रहा है जो इस बिजनेस के अंदर सिंसियरिटी नहीं दिखाते, और या फिर जो इस बिजनेस के अंदर ढंग से काम नहीं करते। ऑफ कोर्स उनके लिए वेस्ट ऑफ टाइम और वर्थलेस ही है। तूने 10,000 का जिम का सब्सक्रिप्शन लिया और तू एक भी दिन जिम नहीं किया, तो क्या तेरे लिए वो वर्थलेस और वेस्ट ऑफ टाइम नहीं हो गया। वो बोलेगा एग्जैक्टली। तो भाई यहाँ भी यार लाइफ में हर सेक्टर के अंदर कुछ लोग वैसे होते हैं।
तो कभी कल को तुझे जिम ज्वाइन करना होगा तो तू किसको देखकर जिम ज्वाइन करेगा? उसको देखकर जो जिम जाके बॉडी बना लिया, या फिर उनको देखकर जिन्होंने हजारों रुपए का सब्सक्रिप्शन लिया लेकिन फिर भी बॉडी नहीं बनाई? हु इज गोइंग टू मोटिवेट यू? तो वो बोलेगा यार दोज who have made body are going to make me. Exactly. तो इस इंडस्ट्री के अंदर उन लोगों को देख जो पॉजिटिव, जिन्होंने सच में लाइफ के अंदर कुछ किया है। और ऐसा नहीं है कि एक दो है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज। तू मुझे बता किस सेक्टर की स्टोरी चाहिए? तुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो बहुत अच्छी बिजनेस क्लास फैमिली को बिलोंग करता था और इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो गया? तुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो गांव से बिलोंग करता था, इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो गया? तुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कॉलेज गोइंग था और इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो गया? तुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो लड़की थी, जॉब नहीं करती थी, अनमैरिड थी, इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो गई? तुझे कोई ऐसी इंसान चाहिए जो हाउसवाइफ थी और भाई हर सेक्टर ऑफ लोग इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हुए हैं। तो हाउ आर यू टेलिंग इट्स वेस्ट ऑफ टाइम? एक होता, दो होता तो मैं मान लेता। आई हैव थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज, ठीक है, जिन्होंने काम किया और वो सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, तो यार ऑन व्हाट बिहाफ आर यू टेलिंग इस? अब यहाँ पे वो थोड़ा सा पॉज ले लेगा, क्योंकि आपने जिम का एग्जांपल दिया, इंजीनियरिंग का एग्जांपल दिया। जब वो आपकी हाँ में हाँ मिला ली, तब आपने अपनी बात रखी। आप समझ रहे हो, डायरेक्ट अपनी बात नहीं रखनी चाहिए। पहले अपने आप को गेस्ट का जो सवाल है वो पहले 20-30% उसके दिमाग में खत्म करना होता है, उसके बाद आंसर रखना होता है। यू नो, ये बात होना बहुत जरूरी है। ठीक है, confused due to sorry, I don't have friends। ठीक है, I don't have friends, तो इसमें तो मैंने टीम एलीट के टाइम पे जब मैं वो आंसर दे रहा था, टीम एलीट वाली टीम के बारे में बता रहा था, कभी मैंने बता दिया था कि यार टीम एलीट की ट्रेनिंग प्रोग्राम इतनी अच्छी है कि अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो भी तू इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो सकता है ना? तो उधर आई डोंट हैव फ्रेंड्स टू हाउ कैन आई बिकम सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। तो मैं उस वाले पॉइंट के अंदर यार हमारी जो टीम एलीट का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तेरे मोबाइल के अंदर अगर 10 कॉन्टैक्ट भी हैं सेव्ड, तो तू इस बिजनेस के अंदर बहुत आगे जा सकता है। तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही वर्सेटाइल बिजनेस है और यहाँ हर चीज की, अब यहाँ पे आपको टीम एलीट की हाइप बनानी है और फिर आपको कुछ टेस्टिमनीज ऐसी निकालनी है जिनके पास फ्रेंड सर्कल एक्चुअल में नहीं था और वो इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो गए, और आपको उनकी टेस्टिमनीज उनको शो करनी है। आई डोंट हैव मच टाइम, हाउ कैन आई डू दिस बिजनेस? ऑफ कोर्स टाइम तो यार बिल्कुल सही बोल रहा है यार, टाइम तो मेरे पास भी नहीं था। ठीक है, बट मैं जो कर रहा था उससे आपको इसका क्या जवाब देना है? बिल्कुल यार सही बोल रहा है, आज की तारीख में टाइम किसके ही पास है ना? नो वन हैज टाइम। लेकिन जो तूने मुझे कुछ देर पहले गोल्स बोले थे, ठीक है, आपको याद होगा जब मैं ड्रीम्स की बात कर रहा था तो मैंने वहां पे एक बात और करी थी। क्या करी थी वो बात? कि द ड्रीम्स विच यू आर टेलिंग, डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? when do you think you can do it from your whatever you are doing right now? जब मैंने उससे उसके ड्रीम्स पूछे थे और मैंने उसके ड्रीम्स को इलैबोरेट किया था, तो उसके बाद मैंने उससे एक और बात पूछी। क्या पूछा था? कि when do you think these dreams are gonna come true with the current platform which you are into right now? तो उसने क्या बोला मेरे को? 10 to 50, कोई भी ड्रीम हो, किसी को जमीन लेनी है तो उसके लिए भी यार लग ही जाते हैं, है ना, कुछ ना कुछ साल। ठीक है, तो उसने बोला, तो अगर मैं उसको बोलूं भाई अगर वो ड्रीम तेरा जो तू 10 साल में पूरा कर सकता है उसको 5 साल में पूरा करा जा सकता है, तो क्या तू उसके लिए एफर्ट डालने के लिए रेडी है? तो बोलेगा हाँ एग्जैक्टली यार, टाइम किसी के पास नहीं होता। यू नो, मैं ज्यादातर टाइम के मामले में विराट कोहली का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे कोई बोलता है यार टाइम नहीं है मेरे पास, मैं बोलता हूँ यार एग्जैक्टली यार, टाइम तो किसी के पास भी नहीं होता। लेकिन एक कामयाब आदमी अपनी कामयाबी को बरकरार रखने के लिए, टू मेंटेन हिज सक्सेस, अ सक्सेसफुल पर्सन टू मेंटेन हिज सक्सेस, ही मैनेजेस हिज टाइम, एंड टू बिकम सक्सेसफुल एंड टू मेंटेन हिज सक्सेस, ही मैनेजेस हिज टाइम। भाई तू विराट कोहली को देख, यू नो, ही इज अ मैरिड पर्सन, वो भी अनुष्का शर्मा के साथ। ही इज अ बीसीसीआई, मतलब इंडियन टीम का कैप्टन है, उसको बीसीसीआई की मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, आईसीसी की मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, इंडियन कैप्टेंसी का काम करना पड़ता है। यू नो, ही इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सो मेनी ब्रांड्स, उसको जिम जाना होता है डेली, उसको क्रिकेट प्रैक्टिस करनी होती है डेली, ही शुड गिव टाइम टू हिज फैमिली। तुझे नहीं लगता एक आदमी इतना सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि वो अपने हर काम के लिए टाइम निकालता है। अगर वो इतना सक्सेसफुल है और इतना टाइम मैनेज कर सकता है, तो तुझे क्या लगता है हमें इतनी यंग एज में, जहां हमारा करियर बिल्ड हो रहा है, हमें वर्सेटाइल नहीं होना चाहिए? हमें बाकी चीजों के लिए टाइम नहीं निकालना चाहिए? हमें रेसिडुअल सोर्स ऑफ इनकम के लिए टाइम नहीं निकालना चाहिए? तो उसका जवाब बोला नहीं यार, निकालना चाहिए। एग्जैक्टली यार, टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम तो निकालना पड़ता है टू हैव अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे बात, जब मैं कॉलेज गोइंग में था, When I was a college going student, इस सवाल का मैं ये जवाब देता था कि भाई अभी 6 सब्जेक्ट हैं और सेमेस्टर अगर अनाउंस कर दे कि 6 से 8 सब्जेक्ट हो गए और कॉलेज अब से 2 घंटा एक्स्ट्रा होगा, तो तू क्या कॉलेज छोड़ देगा? तो पीपल यूज्ड टू से नो, मैं कॉलेज तो नहीं छोड़ूंगा। ऑफ कोर्स दोस क्वेश्चंस कैन नॉट बी
used now, because now we are into job sector and we are into every sector, so we have to take a common example. तो here मैं ज्यादातर विराट कोहली का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है. I don't have मैं इसमें कभी कभी अंबानी का एग्जांपल भी देता हूँ कि यार ही इज सो सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इतना पैसा है फिर भी still he manages time to reopen new business. Every 6 months or 1 year I get to know something that Ambani is opening a new sector. Now how is he managing time? Because he wants to become even more successful. Now we are not even an inch of him and we are already busy. Do you think this is the right time to be so busy, or we should manage some time? Then my guest is like, yes, we should manage some time. ठीक है, तो टाइम की प्रॉब्लम आपको अपने से ऊपर वाले सक्सेसफुल लोगों का एग्जांपल देते हुए शो करना होगा, ठीक है. आई डोंट हैव मच टाइम, हाउ कैन आई डू दिस, ये तो मैं कर चुका हूँ. हाउ कैन आई नॉट, आई कैन नॉट कन्विंस पीपल. इसमें भी मैंने टीम एलिट का एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है. वो टीम एलिट वाला जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होगे तो उसमें ये जवाब सॉल्व हो जाएगा. आई कैन नॉट कन्विंस पीपल. प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव. यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत सारे लोग आते हैं, प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव. तो इसका जवाब मैं क्या देता हूं? एग्जैक्टली यार, प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव फॉर दोस हु डोंट नो अबाउट द प्रोडक्ट. हाँ भाई, तू बिल्कुल सही बोल रहा है, प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है until you know the reality of these products. If you know what is within these products, you will realize the quality and the price of the product is actually, sorry, the price of this product is actually low. मैं सामने वाला जब बोलता है कि यार प्रोडक्ट की जो प्राइसेस हैं वो बहुत हाई हैं, तो मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता है कि भाई तू बिल्कुल सही बोल रहा है, और वो इट इज गोइंग टू बी हाई अंटिल यू नो द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. जब तक तू इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी नहीं समझ जाता तब तक ये प्रोडक्ट तेरे को महंगे ही लगेंगे. यू नो, एक बात बता, विच प्रोडक्ट डू यू फील कॉस्टली? मैं उससे पूछता हूँ कि तुझे कौन सा प्रोडक्ट कॉस्टली लगता है, तो वो कोई भी प्रोडक्ट मुझे बोलते हैं कि सर सो एंड सो प्रोडक्ट. My next question, is there a product in market which is more costly than this? तो आंसर आता है yes, there is. हर प्रोडक्ट से ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल. Now why it is even more costly? Because it is having even more quality, है ना. फिर मैं यहाँ पे बताता हूँ कि सर हमारा जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है. You cannot answer this question until unless you have product information, ठीक है. यहाँ मैं क्या बोलता हूँ कि सर हमारे प्रोडक्ट्स के, अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो मैं बोलता हूँ सर इट इज 100% प्योर प्रोडक्ट, और नॉट वन नॉट टू, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सैटिस्फाइड कस्टमर, है ना. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सैटिस्फाइड पीपल हु हैव गॉट देयर प्रॉब्लम्स क्योर्ड विद आवर प्रोडक्ट, हु हैव गॉट who have found their health getting better with Ayurvedic product. And trust me sir, इस क्वालिटी के अंदर ये प्रोडक्ट्स इस प्राइस के अंदर इंडिया में मिल ही नहीं सकते. यू शो मी वन कंपनी जिसके इस प्राइस के अंदर प्रोडक्ट हो और ऐसी टेस्टिमनी हो और वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट हो. आई आस्क देम 3 क्वेश्चंस कि भाई तू बता दे इस प्राइस के अंदर यही क्वालिटी का प्रोडक्ट जिसकी इतनी ही मार्केट के अंदर टेस्टिमनी हो, which is having the same testimony out in the market, customer reviews are same, and it is an international product. And it is an international product. Most of the people failed, everyone almost failed to bring such products to me. मैं बोलता हूँ कि ठीक है भाई, you know, show me a product which is actually of international quality, है ना. फिर मैं उनसे, वो बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट है बट इट इज नॉट इन इंटरनेशनल मार्केट. मैं बोलता हूँ कि अगर इतना ही अच्छा था तो व्हाई इट इज नॉट गेटिंग सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट इज, एंड नाउ आई एक्सप्लेन देम व्हाई इंडियन प्रोडक्ट्स आर नॉट गेटिंग सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट. बिग कंपनीज ट्राइज टू मेक देमसेल्फ इंटरनेशनल, बट टू बिकम इंटरनेशनल यू शुड हैव इंटरनेशनल क्वालिटी. When you start selling your products in Dubai has its own qualification test, you know, and if your products are having enough quality, only then you can do your business in Dubai. Most of our product have already started selling in Dubai and they have that international quality. भाई आपको इंडियन प्राइस के अंदर इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है. इट इज नॉट कॉस्टली, यू डोंट नो द बेनिफिट्स एक्चुअली ऑफ दोस प्रोडक्ट. आपको अगर बेनिफिट समझ में आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा प्रोडक्ट का प्राइस वर्थ इट है. इट इज एक्चुअली वर्थ इट. कॉस्टली होता तो हम इतना बड़ा बिजनेस कभी नहीं कर पाते, ठीक है. So have financial issues now? I will do it later. इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ. I will discuss with my friends. देखो अगेन ये एक वॉल क्वेश्चन है. I will discuss with my friends. जब आप किसी चीज को लेकर सुपर एक्साइटेड हो जाते हो, when you are super excited, मैंने आपके ड्रीम्स को लेकर बात करी, आपके सपनों को लेकर बात करी. I had a complete communication on your dreams on so many topics. And you are super, you know, when you are convinced, so you know what is going on in your heart. Here, I want to start this business, I want to start this business, I want to start this business. Your mind is completely onto this particular field, from where I am going to arrange the money, what I am going to buy the product.
when you are, आप अपना टाइम याद करो जब आप बिजनेस ज्वाइन कर रहे थे, what was at that point when you decided I want to do the business, what was running in your mind? Let's talk about the psychology little bit. आपके दिमाग में चल रहा था कि पैसे क्या अरेंज करूं, कहां से अरेंज करूं, और अगर आपके पास पैसे थे तो आप ये सोच रहे थे प्रोडक्ट कहां से, कौन कौन सा प्रोडक्ट लूं, मेरे को स्टार्ट करना है, मेरे को भी कुछ करना है. This is what runs in your mind when you are convinced for the business. अगर वो बोल रहा है कि मेरे को फ्रेंड से बात करनी है, इसका मतलब वो बिजनेस को लेकर कन्विंस ही नहीं है. ठीक है, तो आपको उसको समझ, आपको बिजनेस पे लेकर चल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, what do you want to discuss? मैंने भी यही सोच रहा था पहले when I was planning to start my business, even I was thinking that I will first discuss with my friends, but then I realized वैसे मैंने उसको क्या बोला, when I was starting this particular business, feel, felt and found. ठीक है, even I thought that first I will discuss with my friends, but later on I took it the other way. But तू बता, तू क्या डिस्कस करने वाला है? By the way, what are you going to discuss? Ask him, है ना. वो बताएगा, मैं पहले दोस्तों से पूछूंगा. क्या पूछोगे, है ना. तो डू यू थिंक व्हाट योर फ्रेंड्स आर डूइंग? ठीक है, आप उनसे पूछो कि आपका दोस्त क्या कर रहा है, कहाँ रहता है. चलो बहुत अच्छी बात है. तो डू यू रियली थिंक आपने जो आपके लाइफ के इतने बड़े डिसीजन, आपको लगता है वेस्टीज से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है? उसने बोला हाँ सर हो सकती है. तो डू यू रियली थिंक आपके दोस्त ने अगर इस बिजनेस को उस लेवल पर, यू हैव अंडरस्टूड दिस बिजनेस इन द लास्ट 1 hour, उसके बाद हमारा एक अच्छा डिस्कशन हुआ है, उसके बाद आपको ये बिजनेस समझ में आया है, करेक्ट. आप तो जो समझ आपकी है इस बिजनेस को लेकर फिलहाल, क्या वही समझ आपके दोस्त की है इस बिजनेस को लेकर फिलहाल? क्या वो इतनी इंफॉर्मेशन रखता है इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? क्या आपके दोस्तों को पता है नेटवर्क मार्केटिंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री है? What is, how many people in India are actually a part of network marketing? How many people have changed their life from network marketing? You know, how many people have actually transformed their life from network marketing? What is the international market of network marketing? What government of India thinks about network marketing? क्या ये सारे फैक्ट एंड फिगर्स आपका फ्रेंड जानता है? तो बोलेगा नहीं. तो बोले चलो सर, फिर आपको क्या लगता है, आप एक ऐसे, मतलब एक ऐसे, मैं आपके फ्रेंड की बात नहीं कर रहा, बट एक ऐसे रैंडम इंसान से सजेशन लेना, किसी भी इंसान से जिसको कोई फैक्ट एंड फिगर्स का आइडिया नहीं, डू यू थिंक यू विल गेट एन एक्यूरेट सजेशन? है ना. आप जब छोटे थे, आप जब प्राइमरी या फिर सेकेंडरी स्कूल में थे, एंड इफ यू हैड अ मैथ्स डाउट, आपका कोई मैथ सवाल का, देखो ये फॉलोअप एक दोस्त ही कर सकता है. ठीक है, तो आपका मैथ्स में कोई डाउट होता तो आप केमिस्ट्री वाली मैम के पास जाते थे या फिजिक्स वाली मैम के पास जाते थे? तो ही विल बी लाइक, आई यूज्ड टू गो टू मैथ्स मैम. व्हाई? बिकॉज योर मैथ्स आंसर कैन बी सॉल्व्ड विद मैथ्स मैम, करेक्ट, नॉट विद द केमिस्ट्री फैकल्टी और द फिजिक्स फैकल्टी. एग्जैक्टली. आपका दोस्त हो सकता है इंजीनियर का टॉपर हो, ही मस्ट बी द टॉपर ऑफ हिज कॉलेज. आपका दोस्त हो सकता है आपके कंपनी का नंबर 1 एम्प्लॉय हो. आपका दोस्त हो सकता है आपका, आप पता हो सारी बात, लेकिन क्या आपके दोस्त को नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है 5-7 साल का? क्यों, किसी भी चीज में टॉपर बनने के लिए या फिर एक अच्छी पोजीशन लेने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है. हाँ, अगर आपको जेन्युइन रिव्यूज चाहिए, मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर नीति आयोग का कमेंट शेयर करता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या सोचती है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर वो शेयर करता हूँ. I will share you on WhatsApp few big personalities like Robert T. Kiyosaki, Warren Buffett. ये लोग क्या सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, है ना. फिर आप डिसाइड कर लो आपको किसके सजेशन पे रहना है. वैसे आप क्या चाहते हो? आप वॉरेन बफेट और सक्सेसफुल जो बड़े बड़े नाम जिनको आप भी जानते हो, आप उनके सजेशन को फॉलो करना सजेस्ट करोगे, या फिर आपके फ्रेंड्स को अभी नेटवर्क मार्केटिंग की कोई नॉलेज नहीं है, वो खुद ही बोलेगा नहीं मैं इनको, तो उनको बोलो सर आई एम सेंडिंग यू द व्हाट्सएप डिटेल्स राइट अवे, आप उनको खुद देख लीजिए और उनको अंडरस्टैंड, और ऑन द स्पॉट आप उसको ये सारी चीज भेज सकते हो. ठीक है, नॉट माई कप ऑफ टी. ठीक है, वो नॉट माई कप ऑफ टी, तो उसको बोलो कॉफी समझ के पी ले. चलो, इसकी मैंने क्या बात करी थी, नॉट माई कप ऑफ टी की. अभी भी वो शायद बिजनेस के आउटपुट को लेकर कंफर्म नहीं है. ठीक है, he is not yet confirmed with the output of the business and that is the reason he is telling not cup of my cup of tea. तो उससे पूछो आपकी कप कौन सी है, सोने की है, हीरे की है, चांदी की है. ठीक है, ऐसा नहीं पूछना है, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ. ठीक है, ये बहुत रेयर लोग बोलेंगे. ये क्वेश्चन का आंसर मे बी आपको 50 में से एक गेस्ट बोले दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी. ठीक है, जैसे मैं विराट कोहली की बात करूं, मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में विराट कोहली की एग्जांपल्स देता हूं. ठीक है, अब उसको ये बोलता हूं कि सर विराट कोहली हो सकता है सर दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी. ठीक है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता था. अब मैं इसका जेन्युइन आंसर दे रहा हूं. ठीक है, आप इसको ध्यान से सुने कि सर मुझे भी जब मैं इस बिजनेस को सुन रहा था तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा ही लगता था कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, है ना. और मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद इस चीज के लिए नहीं बनाऊं. बट मैंने जब थोड़ा बहुत अपने आसपास लोगों को ऑब्जर्व किया, जैसे विराट कोहली हो गया, वैसे तो वो क्रिकेट खेलता है ना, एंड सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट इज नॉट, इट्स नॉट हिज कप ऑफ टी, बट
आप अगर ऑब्जर्व करेंगे जितने भी कामयाब लोग हैं, दे आर वर्किंग ऑन मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम. एंड विराट कोहली ने जैसे ही क्रिकेट के अंदर थोड़ा सा सक्सेसफुल हुआ, ही स्टार्टेड डूइंग एंडोर्समेंट. वो डिफरेंट डिफरेंट एड कंपनीज के लिए एड बनाने लगा. झंडू बाम बेचना इज नॉट विराट कोहली कप ऑफ टी, लेकिन ही इज डूइंग ऑल दैट थिंग जस्ट बिकॉज ही नोज कि ये सारे काम करने से उसका फाइनेंशियल सर्कल स्ट्रांग होता है, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ती है, और इनकेस फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम रहा तो फाइनेंशियली ही वोंट बी हिट एवर. और उसने अपने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस, एक इंसान जो खुद कंप्लीट डाइट पे रहता है, उसने रेस्टोरेंट खोल रखा है. खुद खाना नहीं खाता लेकिन दुनिया को खाना खिला रहा है. खाना खाना उसकी कप ऑफ टी नहीं है, बट ही इज मेकिंग श्योर दैट पीपल आर ईटिंग फूड बिकॉज ही नोज दैट from there he can get actually financial freedom. It's not about sir ये आपकी cup of tea है या नहीं है. It's all about कि या ये आपको क्या एक better career, क्या एक better future, क्या एक stable future दे सकता है या नहीं. If yes, then I would tell you that this is something which you should get into it, है ना. If not, तो फिर कोई बात नहीं है. लेकिन सर आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जैसे इस बिजनेस के अंदर जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एक्सेल किया है. फिर यहाँ पे आप कुछ लोगों की टेस्टिमनी शेयर कर दें उनके साथ में, जो आपको ये बोले इट इज नॉट माई कप ऑफ टी. ठीक है. I stay alone. I cannot buy 3,000 rupees worth product. तो ये किसी का क्वेश्चन आया, I stay alone. I cannot buy 3,000. उसको बोलो शादी कर ले और फिर ले ले. ठीक है. चलो ऐसा नहीं बोलना है. तो आप अगर कोई बोले आप वो स्टे अलोन करता है तो आप उसको ये बोल सकते हो, ठीक है, कि वी हैव डिलीवरी ऑल ओवर द इंडिया. सर अगेन पहले आपको उसको बिजनेस के लिए कन्विंस करना है. ठीक है. सबसे पहले आपको उसको बिजनेस के लिए कन्विंस करना है. इफ ही इज रेडी फॉर बिजनेस तब वो ये बोल सकता है. सर देखो इस पॉइंट को बोलने के दो तरीके हैं कि सर एक्चुअली मैं बिजनेस करने के लिए तो रेडी हूं, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है मैं इतने प्रोडक्ट्स का करूंगा क्या. ये एक जेन्युइन क्वेश्चन हो गया. वो बोल रहा है सर मैं रेडी हूं, 3,000 रुपए भी मेरे अकाउंट में है, लेकिन मैं इतने पैसे का करूंगा क्या. तो अब आपको इस सवाल का जवाब देना है. लेकिन अगर आपको वाइब आ रही है, यू आर गेटिंग अ वाइब वेयर यू फील दैट द पर्सन इज टेलिंग जस्ट टू इग्नोर द बिजनेस, कि नहीं सर मैं तो अकेला रहता हूं, मुझे इतने प्रोडक्ट की क्या जरूरत, तो आपको बिजनेस के लिए कन्विंस करना है. तो यू हैव टू कन्विंस हिम फॉर द बिजनेस. लेकिन वो बिजनेस के लिए कन्विंस है, आपको दिख रहा है और वो जेन्युइनली ये सवाल पूछ रहा है कि तो आपको क्या बोलना है. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर. यू कैन कुरियर ऑल द प्रोडक्ट्स टू योर होम टाउन. आप अपने घर में प्रोडक्ट कुरियर करा सकते हैं. बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं. कुछ प्रोडक्ट्स आप अपने घर मंगाएं, बाकी आपकी फैमिली जहां भी रहती है आप वहां पे हमारे प्रोडक्ट्स कुरियर करवा सकते हैं. और वो स्ट्रेट अवे हाँ बोल देगा. क्यों हाँ बोल देगा? बिकॉज वो बिजनेस करना चाहता है. नहीं करना चाहता, अगर वो इस बात पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आपको उसको बिजनेस के लिए कन्विंस करना है. ठीक है. ऑलरेडी डन ऑल दिस काइंड ऑफ बिजनेस, तो मैं आपको पहले ही आंसर कर चुका हूं. ठीक है. आई एम इन माई होम टाउन नाउ, my own business start, then I will start the business. Okay, I am in my hometown now. कुछ लोग बोल रहे हैं मैं अपने होम टाउन में हूँ, है ना. तो आपको इसको बोलना है बिल्कुल आपको बोलना है सर यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपको वेस्टीज मिली. अगर कोई बोलता है कि सर अभी मैं अपने होम टाउन में हूँ, जब मैं वापस बैंगलोर या फिर पुणे या फिर चेन्नई पहुंच जाऊंगा मैं तब इस बिजनेस को शुरू करूंगा, तो आपको उसको क्या बोलना है, सर आप बहुत ही फॉर्चुनेट हो, बहुत ही लकी हो, आपको वेस्टीज मिली. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वेस्टीज इज आप घर बैठे बैठे पैसे कमाना शुरू कर सकते हो, है ना. अब आप दोबारा से वेस्टेज की टॉपिक पे आ जाओ, उसके ड्रीम्स को कनेक्ट करो, उसके गोल्स को कनेक्ट करो और आप उसको बोलो कि सर फिर टाइम की अर्जेंसी की वैल्यू क्रिएट करो. ठीक है. शिवम बसीन जी का क्वेश्चन आया है, माय फैमिली. हाँ ठीक है. तो 2 क्वेश्चन और आए मेरे पास, मैं उनका और जवाब दूंगा. ठीक है. तो आपको टाइम की अर्जेंसी वाला जो मैंने आपको समझाया था कि कोई भी इंसान जब बिजनेस करता है तो बिजनेस करने के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज होती है, टाइम और मनी. सॉरी, वैल्यू ऑफ टाइम और वैल्यू ऑफ मनी. ये 2 चीज बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. तो मैंने वो वाला जो फॉलोअप किया था ना, उसी फॉलोअप को आपको रिपीट करना है. ठीक है. उसका शुभम जी ने पूछा है प्लीज एक्सप्लेन द प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है प्लीज, मतलब प्रोडक्ट वाला पार्ट. तो आपको जैसे ही कोई बोले प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है तो बहुत सिंपल है, मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, आप इसको ध्यान से सुने. आपको उनको बोलना है कि सर एग्जैक्टली मैं आपकी बातों से पूरा एग्री करता हूं कि प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ उन लोगों के लिए एक्सपेंसिव है जिनको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता. लेकिन प्रोडक्ट उन लोगों के लिए एक्सपेंसिव है जिनको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता. अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाए तो आप खुद बोलोगे प्रोडक्ट्स आर वर्थ इट. ऑन दैट स्पॉट अभी मैंने आपको ये सवाल बोला, आपने मेरे को बोला कि सर प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, मैंने आपको अगली लाइन बोली अरे सर बिल्कुल एक्सपेंसिव है, मैं आपकी बात को
कंप्लीटली एग्री करता हूं, लेकिन ये आपके लिए तब तक एक्सपेंसिव है जब तक आपको हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता। अब आपके दिमाग में थॉट क्या आ रहा है, यार ऐसा क्या है इनके प्रोडक्ट में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो मेरा ये कम्युनिकेशन काम कर रहा है। अब मैं जो भी बोलूंगा आप उस बात को सुनोगे और आप उस बात को समझोगे। अब मैं प्रोडक्ट की तारीफ करना और प्रोडक्ट्स के बारे में बताना शुरू करूंगा। मोस्ट ऑफ यू व्हाट यू डू इज, आप सीधा प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर देते, अरे नहीं सर कहाँ एक्सपेंसिव है, ऐसा वैसा ये वो। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, है ना? पहले मैंने आपको क्या बोला, गेस्ट का सवाल जो भी हो, पहले आपको एक सही सवाल पुट फॉरवर्ड करके उसका 20% 30% सवाल उसके माइंड में उसको ब्रेक करना है। तो मैंने क्या बोला, पहले मैंने उसकी बात एक्सेप्ट की, हाँ सर प्रोडक्ट आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल एक्सपेंसिव है। अगला स्टेटमेंट मैंने क्या बोला कि सर प्रोडक्ट आपके लिए तब तक एक्सपेंसिव है जब तक आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं मालूम, है ना? फिर मैंने उससे पूछा कि कौन सा प्रोडक्ट आपको एक्सपेंसिव लग रहा है, तो उसने मुझे कोई भी प्रोडक्ट बोला। तो मैंने उससे अगला सवाल पूछा, क्या इससे महंगा प्रोडक्ट मार्केट में कोई दूसरी कंपनी नहीं बेच रही? तो उसका जवाब क्या होगा, बिल्कुल बेच रही है। अभी भी वो क्या सोच रहा है, इनके प्रोडक्ट के अंदर ऐसा क्या है, लेकिन उसका आंसर मैंने नहीं दिया। मैंने और क्यूरियोसिटी कंप्लीट करी कैसे, मैंने उससे पूछा कि क्या इससे महंगा प्रोडक्ट मार्केट में और कोई दूसरी कंपनी नहीं बेच रही? तो वो क्या बोलेगा, हाँ भाई बिल्कुल बेच रही। मैंने बोला उसके अंदर क्या है? तो वो बोलेगा अच्छा उसकी क्वालिटी और बेटर है। एग्जैक्टली दैट इज द रीजन आर प्रोडक्ट। फिर आप अपने उस प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू करो। मैं राइस ब्रान ऑयल के जैसे बारे में बताता हूँ तो मैं बहुत कुछ बता पाता हूँ राइस ब्रान ऑयल के बारे में, ठीक है? फिजिकली रिफाइंड ऑयल है, ठीक है? और क्या बोलते हैं, अगर चलो मैं इसका जवाब देता हूँ। फिजिकली रिफाइंड ऑयल है, प्लस एफ प्लस प्रोडक्ट है। विराट कोहली इस प्रोडक्ट को खुद प्रमोट करता है बिकॉज हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल 0 कोलेस्ट्रॉल है इसके अंदर, ठीक है? राइस से बना हुआ तेल है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इंडिया का ये एक वन ऑफ सच ब्रांड है जिसने अपना ऑयल दुबई में भी सेल करना शुरू कर दिया है। अब आप मुझे बताओ, एक कंपनी इंडिया में जो राइस ब्रान ऑयल 250 और 300 रुपीज का बेच रही है और वो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी सेल कर रही है और वो इंटरनेशनल क्वालिटी का है। तेल तो आपको सब एक जैसे मिल जाएंगे, क्या वो इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं? तो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट जरूर शेयर करता हूँ कि हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी का है, ठीक है? ठीक है, और बहुत सारे सवाल आ गए। फेस टू फेस कम्युनिकेशन अगर पॉसिबल ना हो पाए तो सर उनसे फोन पर कन्विंस कैसे करें? फोन पे, अच्छा चलो इसका मैं लास्ट में जवाब देता हूँ। एग्जैक्टली सर, आई एम यूजिंग द सेम एग्जांपल यूज्ड गिव, ठीक है? तो इस तरीके से आपको उनसे बात करनी है प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है? प्रोडक्ट की नॉलेज होना बेसिकली बहुत जरूरी है इसके लिए, ताकि आप प्रोडक्ट के बारे में बात कर पाए, ठीक है? अब लास्ट टॉपिक, बिकॉज सारे फॉलोअप क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है? एंड वी हैव यूटिलाइज्ड आवर टाइम रियली वेल। 1.5 आवर का सेशन था, ठीक है? अब मुझे जो लास्ट चीज आपको बतानी है, मेरा सजेशन होगा आप लोगों को ये कि जो फॉलोअप्स आप कर रहे हैं वो आप व्हाट्सएप कॉल पे करें। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मैंने जैसे कुछ फॉलोअप किए तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि मैं जैसे जो इंसान फॉलोअप कर रहा होता है वो बहुत पैशनेट होता है, उसके अंदर एक अलग हैप्पीनेस होती है, एक अलग करिश्मा होता है, एक अलग वो होता है, जोश होता है फॉलोअप करते टाइम, है ना? अब आप सोचो, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी डू फॉलोअप वी आर वॉकिंग, हम वॉक करते करते फॉलोअप करते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं, हम वॉक करते करते फॉलोअप करते हैं, ठीक है? तो बहुत बार क्या होता है कि गेस्ट लेटा हुआ होता है। अब आप सोचो, आप खड़े खड़े फॉलोअप कर रहे हो, गेस्ट लेटा हुआ है, तो आप क्या उस लेवल की फीलिंग उस गेस्ट के अंदर डाल पाएंगे? क्या आप गेस्ट को उस लेवल पे समझा पाएंगे? नहीं, है ना? और हमें नहीं मालूम होता कि गेस्ट फोन कॉल के ऊपर किस कंडीशन के अंदर है, ठीक है? सो जब भी आप फॉलोअप कर रहे हैं, है ना, जब भी आप फॉलोअप कर रहे हैं, फॉलोअप मतलब ये जो अभी हम इतनी देर से कर रहे हैं इसको फॉलोअप ही बोलते हैं, है ना? जब भी आप गेस्ट को कन्विंस कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन के बाद आप उसका ये बैकअप सेशन ले रहे हैं, मेक श्योर ये एक वीडियो कॉल पे हो ताकि आपको गेस्ट दिख रहा हो, यू नो, देन यू कैन बी 100% श्योर कि जो भी आपकी बातें हैं वो गेस्ट तक सही वे में पहुंच रही हैं। बिकॉज फोन कॉल के ऊपर क्या होता है, 10 में से 7 या 6 बातें ही गेस्ट तक पहुंच रही होती है ना? सो मैं आपको इंटरैक्ट बोलूंगा कि फेस ऑन फेस कम्युनिकेशन इज बेटर। व्हाट्सएप कॉल पे करें, जूम कॉल पे ना करें, क्योंकि वहां लिखना तो कुछ है नहीं, सिर्फ बातें करनी है, ठीक है? टू गेट देयर, ठीक है? how long will it take to get there? Do I have to do shopping every month? Exactly. What if they are not ready to compromise with the quality? है ना? देखो, वेस्टीज में 300 प्रोडक्ट हैं, गेस्ट को हम 300 प्रोडक्ट खरीदने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। You understand that point? हमारे पास कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो दूर से मार्केट में कोई नहीं दे रहा। If the guest doesn't want to compromise with the quality, तो हमारी क्वालिटी भी कोई कम नहीं है, बहुत अच्छी है,
ठीक है, आप उनको बोलो सर आप एक बार यूज करके देखो, और वैसे भी उसको 300 प्रोडक्ट्स खरीद के अपने घर में यूज नहीं करने, उसको अपने घर में वो प्रोडक्ट्स यूज करने हैं जो उसको लगे वेस्टीज से उसके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मी फॉर बी देयर। अब आप जैसे किसी ने यहाँ पे मेरे से पूछा कितना टाइम लगेगा मुझे उस लेवल तक पहुंचने में, डू आई हैव टू डू शॉपिंग एवरी मंथ, है ना, तो आपको उसको क्या जवाब देना सर, वेस्टीज इज अ स्टोर जस्ट लाइक सुपरमार्केट एंड बिग बाजार। क्या आप बिग बाजार सुपरमार्केट से हर महीने शॉपिंग करते हैं, तो बोलेगा यस सर। तो आपको इसका जवाब ये देना है कि इफ यू आर डूइंग शॉपिंग एवरी मंथ फ्रॉम बिग बाजार, सिमिलरली यू हैव टू डू शॉपिंग ऑफ योर होम रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम वेस्टीज एवरी मंथ, क्योंकि वो वैसे भी हर महीने खत्म हो ही जाएगा। और हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू टेक टू रीच द पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन योर, it depends on you. There are people who have touched 1 lakh rupees income in 1 year, 1 lakh rupees in 10 years. You know, it depends completely on you. That is why this is called a self-employed. This is a business opportunity. This is here people call you an entrepreneur because you decide your own journey. You know, यहाँ पे आपको support पूरा मिलेगा, एनवायरमेंट पूरा मिलेगा। उस एनवायरमेंट के अंदर आप कितना फास्ट ग्रो करना चाहते हैं ये कंप्लीट आपके ऊपर है ना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए तक पहुंचाऊं। आप अपना माइंडसेट उसके साथ शेयर कर दें कि व्हाट इज योर माइंडसेट, ठीक है। सो आई होप आई एम डन विद ऑल द क्वेश्चंस हियर। बहुत अच्छा लगा यू नो इंटरेक्ट करके आप लोगों के साथ में, और आई होप ये जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किए हैं, आपने सारी चीजें नोट डाउन करी होंगी। इसको रिहर्सल, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, मैंने जब मैं अपने स्टार्टिंग लेवल पे था, जब मेरे मेंटर विपिन सर ने मुझे ये सारी चीजें सिखाई थी, मुझे आज भी याद है, बैंगलोर गेट का एक होटल था, हमने इसको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस किया था। आई प्रैक्टिस्ड इट मल्टीपल टाइम्स। मेरे पास में मतलब आई हैड अ डॉग, ठीक है, मैं कुत्ते को ही समझा देता था उस टाइम पे, ठीक है, मैं अपने रूममेट को बैठा के समझाता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से परफॉर्म होती हैं। आप अपने गेस्ट ना खराब करें, ठीक है, आप खुद बैठे इमेजिन करें गेस्ट क्या बोलेगा, यू नो, इमेजिन करें। और ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है, ठीक है, जो हमने पहला 15 मिनट में डिस्कस किया था, ठीक है, तो आप उस चीज को रिपीट करें, बिकॉज वो अगर फर्स्ट 15 मिनट्स के कम्युनिकेशन में आपने मास्टरी हासिल कर ली, देन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो प्रेजेंटेशन के बाद आते हैं वो खत्म हो जाएंगे। 80% लोगों का सवाल आना ही बंद हो जाएंगे अगर आपने पहले 15 मिनट के कम्युनिकेशन के अंदर मास्टरी कर ली। तो वो मास्टरी कैसे होगी, वो प्रैक्टिस करके होगी। आप अपने अपलाइन के साथ करें, आपका जो ऑलरेडी 2-4 लोगों का अच्छा ग्रुप, आप जैसे 3 दोस्त ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप एक दूसरे के साथ करें। यू नो, द मोर यू स्पेंड, सर आप किसी अच्छे डांसर को देखो, चाहे वो कितना अच्छा भी डांसर हो, फिर वो मिरर के सामने डेली प्रैक्टिस करता है, वो इस एटीट्यूड में कभी नहीं आता कि मुझे तो सब आता है, यू नो। तो हमने तो अभी शुरू ही किया है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमें सब आता है। हमारे मिरर हमारे दोस्त हैं, हमारी अपलाइन है, सिट इन फ्रंट ऑफ देम, यू कैन एक्चुअली सिट इन फ्रंट ऑफ मिरर, वो बात सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करो। उस 15 मिनट में जो सवाल है ना, स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चंस, आप उनको प्रैक्टिस करो। डिफरेंट पॉसिबल सिचुएशंस खुद ही सोचो, खुद ही आंसर करो। सवाल आए तो अपनी अपलाइन के साथ डिस्कस करो, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट मास्टर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। बहुत सारे लोग अपने गेस्ट पे ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है ना। आप जो लोग ऐसे जो अपने गेस्ट पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि आप लोग डॉक्टर नहीं बने, सीधा पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट होता है, वरना यू नो कई लाशें निकल जाती हैं उस चक्कर में। तो दिस एटीट्यूड इज नॉट राइट, ठीक है। गेस्ट पे एक्सपेरिमेंट मत करें, क्योंकि वो गेस्ट आपके हैं और वो खराब हो रहे हैं, ठीक है। सो ऑलवेज प्रैक्टिस विद योर अपलाइन, विद योर सेल्फ। ये फॉलो 15 मिनट का सेशन अगर आपने मास्टरी कर ली, यू विल गेट 10 से 6 to 7 रिजल्ट्स ऑलवेज विदाउट अननेसेसरी क्वेश्चंस। जो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए ना अभी, वो सवाल ही खत्म हो जाएंगे अगर आपने उस 15 मिनट। क्योंकि क्या होता है उस 15 मिनट के क्वेश्चन में, एक इंसान अपने ड्रीम और वेस्टीज के साथ में कनेक्ट हो जाता है। जब उसके ड्रीम वेस्टीज के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो खुद ही अपने सवालों को अपने अंदर दबा लेता है और वो पूछता है, वो यार क्या ही पूछना, बिजनेस करते हैं ना यार, आप समझ रहे हो। He will not ask you so many unnecessary questions when he is coming. मैं लास्ट में एक लास्ट स्टोरी बताते हुए खत्म करूंगा। मेरे पूरे कोर को ये स्टोरी मालूम है, बट ये लोग जो लोग मेरे साथ यहाँ पहली बार कनेक्ट हुए, उन लोगों के लिए ये स्टोरी, यू नो, we always give reasons when we don't know the reason behind doing that particular thing. हम कभी भी जब हम कारण सिर्फ तब जब हम उस चीज को करने के लिए इंस्पायर्ड नहीं। यू नो, ये एग्जांपल मेरे को हमारे मेंटर ने दिया था जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया था, ठीक है। मान के चलो रात को 12 बज रहे हैं, आप बाइक लेकर घर जा रहे हो, बहुत तेज बारिश हो रही है और आपका पेट्रोल बाइक का खत्म हो गया, ठीक है, और लास्ट का 1 किलोमीटर बचा और पेट्रोल पीछे 1 किलोमीटर है। तो यू डिसाइड टू टो द व्हीकल इन द रेन एंड गो होम। आप बाइक टो करके घर पहुंचे, है ना, आप घर गए और बहुत थक गए थे, पिछली रात को भी नहीं सोए थे, ठीक है, और आप
1 बजे, एक आधा घंटा 12:30, आधे घंटा टो करके आप घर पहुंचे, आपने अपने कपड़े उतारे जो पूरे गीले हो चुके थे, आप पिछली रात को भी नहीं सो पाए थे अच्छे से बिकॉज ऑफ सम एग्जाम प्रिपरेशंस, और आज आप बेहद गहरी नींद में हो और आप सो गए, है ना। आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो चुका है, ठीक है, पेट्रोल पंप 2 किलोमीटर दूर है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आप सो गए और आपको 3 बजे आपका फोन रिंग होता है 4-5 बार और आप 5वीं बार में परेशान होकर उसको उठाते हो। आप अभी बस 1 o'clock सोए थे, इट्स जस्ट बीन 2 hours, आप एक बहुत गहरी नींद, आपकी नींद टूटी, आपने फोन उठाया और आपके फ्रेंड ने आपको कहा कि भाई मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ, सरप्राइज देने के लिए बैंगलोर अभी पहुंचा हूँ, यू नो, मेरे को पिकअप करने अपनी बाइक से जल्दी आ जा। तो आपका उस टाइम पे जवाब क्या होगा? आप उस चीज को ना करने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वो आपका कितना अच्छा दोस्त भी हो। आप उसको बोलोगे कि क्या कर रहा है, अभी तो सोया था, 1:30, 3 बज रहे हैं, तू सुबह आ जाए। वो बोलेगा क्या बात कर रहा है यार, तूने, यार तेरा इतना अच्छा दोस्त हूँ। फिर आप उसको अगला रीजन दोगे, यार बारिश हो रही है कैसे आऊं, वो बोलेगा भाई रेनकोट अलमारी में रखा है, तो अलमारी ले में से लेकर आ जा। फिर आप बोलोगे भाई बाइक में कोई याद आया, आपको पेट्रोल खत्म हो गया था, अब तो पेट्रोल भी नहीं है गाड़ी में, अब कैसे आऊं, और मैं बाइक की चाबी ऊपर वाले कमरे में रख के सोया था और वो अंदर लॉक करके सो रहा है, अब वो कमरा भी नहीं खुलेगा, सुबह खुलेगा, ठीक है। आप एक के बाद उसको एक रीजंस दोगे, ठीक है। अब यही सारे रीजंस मान लेते हैं कि ऊपर कमरे में चाबी है, कमरा लॉक है, बारिश हो रही है, बाइक में पेट्रोल नहीं है और रात को 1:30 सोए। अब यहाँ पे आपके दोस्त के बदले आपकी मम्मा रेलवे स्टेशन पे पहुंची है और आपको बोलती है कि बेटा मैं रेलवे हूँ, सरप्राइज देना की सोच रही थी लेकिन अटक गई बारिश की वजह से और समझ में नहीं आ रहा घर कैसे आऊं, तो क्या तू मुझे पिक करने आ जाएगा? तो क्या ये सारे रीजन आपके दिमाग में आएंगे? आपको सिर्फ आप दिखाई दोगे और आपकी मम्मा दिखाई देंगे। आप दरवाजा पीटोगे, चाबी अंदर से बाहर निकालोगे, बाइक को टो करके भी, ये सारे रीजन आपके गायब। क्यों? नाउ यू नो व्हाई यू आर गोइंग टू डू दैट वर्क। तो मैं जो बार बार बोल रहा हूं कि कैसे सपने और वेस्टीज एक बार कनेक्ट हो गए तो सारे जो आसपास के सवाल हैं, जो इतने सारे हमने अभी डिस्कस किए, ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो मेक योरसेल्फ मास्टर इन कनेक्टिंग द गोल्स ऑफ द गेस्ट विद द वेस्टीज, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द गेस्ट गेटिंग कन्विंस्ड। अगर आपकी मम्मा रेलवे स्टेशन पे है तो आप कोई रीजन नहीं दोगे, आप चुपचाप सारे काम करोगे, बाइक को टो करोगे, रेलवे स्टेशन पे जाओगे, अपनी माँ को लेके आओगे, है ना। तो इट्स ऑल अबाउट लव, इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू वांट दैट थिंग टू हैपन। तो इस बहुत इंपॉर्टेंट है कि गेस्ट के आप गोल्स को इस चीज के साथ कनेक्ट करो। तो इस चीज के अंदर आप मास्टरी कर लो। सवाल और इसके अलावा भी कोई सवाल रह जाए तो ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, फील, फेल्ट एंड फाउंड। ये फॉर्मूला किसी भी सवाल पे अप्लाई होता है, आप इसको अप्लाई करो एंड यू विल गेट योर आंसर्स। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ डिस्कशन करके, मैंने भी आज बहुत कुछ सीखा। यू नो द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच, ये मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे हमेशा ऐसा फील होता है कि जब भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ मैं खुद बहुत रियलाइज करता हूँ कि आज मैंने भी बहुत कुछ सीखा, बिकॉज बातें करते करते मैं भी बहुत सारी नई चीजें अपने अंदर डिस्कवर कर पाता हूँ। तो थैंक यू सो मच all of you for being present here and listening me patiently for the last 1 hour 50 minutes I can say, you know। तो थैंक यू सो मच और मुझे उम्मीद है आप इन चीजों को यूटिलाइज करके अपने बिजनेस के अंदर एक नेक्स्ट हाइट लेंगे और ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू टू फॉर द टीम, जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा सिस्टम डिजाइन किया। आज हम जूम कॉल के थ्रू एक दूसरे के साथ इतना ब्यूटीफुली कनेक्टेड हैं। थैंक यू टू गौरव नागर सर, थैंक यू टू विपिन अग्रवाल सर, थैंक यू नितिन सर, थैंक यू एवरी all my appliance, thanks to all of you for being present here and bus wish you wealth, that's all I can tell you. Thank you so much everyone.